السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور یہ ناول جو ہے ایک کامیڈی سیریز ہے جس میں دو کزنس ہیں اور جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور سب کو ہنستے ہنساتے رہتے ہیں۔ تو جناب اس سیریز کی فرمائش ہم سے کی ہے تابعہ عزیز نے۔ اس سیریز کا نام ہے ہم سے ہے زمانہ اور اس کی مصنفہ ہیں سمرہ بخاری۔ آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 9۔ آپا جان دھوبی کے ہاں کچھ کپڑے بھجوائے تھے استری کے لیے، آ گئے کہ نہیں؟ نانا ماموں نے دادی کے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ دادی اس وقت مزے لے کر ٹھنڈے ٹھار آلو بخارے کھانے اور شیدہ سے پیر دبوانے میں مصروف تھیں۔ بے موقع سوال پسند نہیں آیا، بولی ابراہیم یہ عمر ہونے کو آئی تمہاری مگر سدھرے نہیں ہو، عادتیں اب بھی وہی کی وہی ہیں۔ ایسا کیا غلط بول دیا میں نے؟ کیا کپڑے پریس ہونے کے لیے دھوبی کے بجائے نائی کے ہاں جاتے ہیں؟ شیدہ کے سامنے آپا کا یوں لتاڑ دینا طبیعت پر خاصا گراں گزرا تھا۔ اوہو پھر ایک الٹی بات، میرا مطلب ہے کہ جا کر بہو سے پوچھو، لے کے سارا مزہ خراب کر دیا۔ میں کھا لوں؟ شیدہ جھٹ بولی۔ یہ تیری ہی نظر تھی، حالانکہ تجھے پہلے ہی میں نے لفافہ بھر کر دیے تھے، پر نیت نہیں بھرتی تیری۔ کون کس کو بھرتی کر رہی ہیں؟ آپ کا کیا پرائیویٹ فورس بنانے کا ارادہ ہے؟ شبلی نے کمرے میں داخل ہوتے جو سنا اس کے مطابق بول دیا۔ ابراہیم کے کپڑے دے آیا تھا۔ کپڑے؟ کیوں مذاق کرتی ہیں آپ؟ وہ تو کسی کو قمیض کا ایک بٹن بھی نہ دے، کہاں پوری پوشاک۔ اف، آپ بنا ایسے مذاق کرنے لگی ہیں کہ جی چاہتا ہے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاؤں بلکہ فوت ہو جاؤں۔ بکواس نہ کیا کر، کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ میں تو پوچھ رہی تھی دھوبی کو دے آیا تھا استری کے لیے؟ تو یوں کہے نا، آپ نے بھی شبنم کی طرح ادھوری باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ کون شبنم؟ جہاں دادی کا ماتھا ٹھنکا تو وہیں شیدہ صاحبہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ شبلی کو بھی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شیدہ کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے 2 آلو بخارے اٹھا کر اس کا موڈ خراب کیا اور بولا، فلم سٹار شبنم اور کون؟ تو کیسے جانتا ہے اس کالی کلوٹی کو؟ دادی اللہ سے ڈریں، اگر آپ کے خاندان میں سارے سرخ و سفید ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یوں بھی کالے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ آہو ساری عمر غیر مردوں کے ساتھ بے حیائی سے ناچتی گاتی رہی اور ہوئی اللہ کی پیاری۔ دادی کا دھیان مکمل طور پر بٹ چکا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بولا، دادی آلو بخارا کھانا یقیناً ایک مثبت فعل ہے، لیکن آلو بخارے کھا کر ہم تو اب ہرگز نہیں کما سکتے۔ ثواب کمانے کے کچھ اور طریقے ہیں اور اب اس عمر میں آپ کو تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے تاکہ جتنا اکٹھا ہو سکتا ہے ہو جائے۔ گزرے وقت کی کچھ نہ کچھ تلافی تو ہو۔ آپ آس پڑوس میں جایا کریں، کئی ضرورت مند اور شریف لوگ بستے ہیں جو منہ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی مدد کریں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کے دوران وہ کیسے تیر مار گیا ہے، دادی نے غور نہیں کیا۔ پچھلے دنوں وہ درجن خالہ بیمار رہی ہیں، امی بتا رہی تھیں سلائی نہیں کر سکتی۔ آپ جا کر کچھ سوٹوں کا ایڈوانس ہی دے آئیں، کبھی کبھار کچھ اچھا کھانا بھی بھجوا دیا کریں۔ دادی نے شیدہ کے ہاتھ سے آلو بخاری کی پلیٹ جھپٹی اور بولی، فریج میں رکھے ہیں، اس میں اور ڈال لے اور جا کر ان کے ہاں دے آ، شام کو میں بھی چکر لگا آؤں گی۔ تمہارے ابا آ رہے ہیں تو بہو کہہ رہی تھی رات کے کھانے پر چکن پلاؤ بناؤں گی، اسے کہتی ہوں زیادہ بنا لے، وہ بھی بھجوا دوں گی۔ یہ پلیٹ تو آپ مجھے دے چکی تھی، دادی کو بیگم شیدہ نے یاد دلایا۔ چپ نہ دیدی، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، دادی نے ڈانٹا۔ یہ شبلی بہو کو بھی ابھی آنا تھا، وہ بڑبڑائی، جوادی اٹھ کام کرتے، ماں پکار رہی ہے۔ امی جی میں بیٹھا کب ہوا ہوں جو اٹھوں، میں تو چھت کے جالے صاف کر رہا ہوں۔ شاباش، ابھی تک جالے صاف نہیں ہوئے؟ کم وقت اب کے مکڑیوں سے راز و نیاز کرنے لگا ہے، تجھے تو کوئی بات کرنے والا ملنا چاہیے۔ جلدی آ، مجھے بازار سے دہی لا کر دے۔ دہی کیا کرنی ہے آپ نے؟ اس کی جگہ املی ڈال لیں۔ وے وڈا آیا سیاڑا، میں نے رائتا بنانا ہے۔ اچھا میں سمجھا، خیر چھوڑیں، دیکھیں چھت کتنی صاف اور دیواریں کیسی نکھر گئی ہیں۔ آہو جب 6 مہینے بعد مٹی جھاڑے گا تو واضح فرق تو لگے گا نا۔ بے نیازی سے کہہ کر پیسے تھمائے، پھر کچن میں چلی گئی۔ جوادی دہی لینے گھر سے نکلا، سوچا اکیلے جا کر تو بور ہونا ہے، شبلی کو بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ اور شبلی اپنے گھر کے باہر ہی مل گیا، وہ نانا ماموں کے کپڑے لینے دھوبی کی طرف جا رہا تھا۔ جوادی صرف ایک دہی لینے کے لیے اچھے خاصے موسم میں باہر نکلے ہو؟ شبلی نے جیسے مذاق اڑایا تھا۔ والدہ محترمہ کا حکم تھا، اگر کہتی سر کے بل جا کر دہی لاؤ تو میں یہ بھی کر دیتا، لہجے میں عقیدت سمو کر بولا تھا۔ شبلی نے جیسے اس عقیدت کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا اور بولا، اچھا سر کے بل جانے کا حکم دے دیتی، لوگ اکٹھے ہو کے تماشا دیکھتے تو میں 4 پیسے ہی کما لیتا۔ ارے 4 پیسوں سے یاد آیا، بلی یہ اپنے نانا ماموں نے ابھی تک تنخواہ نہیں دی ہمیں، تم باتوں میں پوچھنا تو صحیح۔ پوچھا تھا،
फरमाने लगे, स्कूल घाटे में जा रहा है, मैं तो खुद मकरूज़ हो रहा हूँ, तुम्हें तनख्वाह कहाँ से दूँ। मैंने कहा मज़ीद कर्ज लेकर। पहले घूर कर देखा, फिर खफा हो गए। कमाल है, इतने बच्चे पढ़ने चले आ रहे हैं, स्कूल अभी भी घाटे में जा रहा है। अब तो मुझे लगता है कोई गबन वगैरह करना पड़ेगा, वरना ईद कैसे गुजरेगी। जब से बड़े हुए हैं घर वालों ने ईदी देना भी छोड़ दी है, बल्कि उल्टा गैरत दिलाई जाती है कि हमें अब उन सबको ईदी देनी चाहिए। जवादी अफसुर्दा हो गया। जवादी यार बाकी सब तो छोड़, लेकिन हमें बानो और ज़ेबा को तो गिफ्ट देने ही पड़ेंगे। हाँ यार, लड़कियों बेचारियों के दिल तो बड़े ही नाजुक होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं और मुर्गी के अंडे की तरह टूट जाते हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारा शायराना ज़ोक दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। क्या मिसाल दी है। शिबली ने अपने अंदाज में दाद दी। जवादी ने इस बात में सर हिलाया और बोला, जरासीम तो मुझ में शुरू से थे, अब जो ज़माने की रविश देखी है तो होशार कतार दर कतार मुझ पर नाजिल होते हैं। अल्लाह रहम करे, सदका दिया कर, कहीं वो बानों की रिश्ता की खाला या बुआ जो भी थी अपने बेटे की बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई तावीज़ तो नहीं करवा गई तुझ पर। तेरा क्या ख्याल है, ये जो मुल्क में इतने शायर हैं, ये तावीज़ों और बद्दुआओं की पैदावार हैं? होने तो चाहिए, अगर नहीं तो फिर वालदैन के बदअमाल का नतीजा है। अब देखना, किसी के यहाँ काका जन्म ले, हम जाकर कहें अल्लाह करे ये बड़ा होकर शायर बने, तो माँ प्यो कहने वाले को धक्के देकर घर से निकालेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, बल्कि धक्के देना नाकाफ़ी है, ठुड्डे भी मारने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। शिबली, जवादी किधर जा रहे हो? सामने से सगीर चला आ रहा था। तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। जवादी के जरखेज़ दिमाग में कुछ ऐसा आया कि झट से कह दिया, मेरी तरफ? अच्छा, मगर मेरा घर तो पिछली गली में रह गया है। हाँ, वो तुम्हारे छोटे भाई ने बताया, तुम इधर को गए हो तो हम भी इधर आ गए। शिबली ने जवादी की बात को सहारा दिया। अच्छा चलो फिर घर चलते हैं, गर्मी बड़ी है, मेरे कमरे में बैठकर बातें होंगी। ये शापर में क्या है? जवादी की नज़रें तो सगीर से पहले उस शापर पर ही पड़ी थीं। निहारी है, असल में अम्मी तो खाला जी की तरफ गई हुई हैं, कह गई थी कि आज खाना बाजार से ले आना, तो बस इसीलिए। और उस दोपहर दोनों ने सगीर के साथ बैठकर निहारी उड़ाई। उसके छोटे भाई को बाजार दौड़ाया, दही और नाना मामू के कपड़े वही लेकर आया, लेकिन एक गलती हो गई, दही की थैली भी कपड़ों वाले शापर में डाल दी। और ये तुम्हारा भाई तो किसी काम का नहीं। दोनों का सदमे से बुरा हाल था। घबराओ नहीं, दही है फ्रिज में, वो मैं तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। हाँ, सूट का ज़रा मसला है, तुम दही भिजवाओ, सूट का मसला कर लेते हैं हम हल। कुछ देर बाद सूट धोबी को वापस पहुँचाया गया, ये कहकर इस पर तो दाग लगा है, दागदार दामन लिए शिरफा नहीं घुमा करते। अम्मी ने एक लंबी लिस्ट थमाई थी, उसे लेकर जवादी जब शिबली के यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी एक ऐसी ही लिस्ट की तैयारी आखिरी मराहल में थी। दादी और शिबली की अम्मी सर जोड़े बैठी थी, नाना मामू तक दिलचस्पी ले रहे थे। शिबली नहायत बेजार अंदाज में उनकी बताई अशिया लिख रहा था। बेसन 2 किलो। एहे शकीला, सिर्फ 2 किलो? रमज़ान का महीना है, 2 किलो तो कम पड़ जाएगा, दादी ने टोका। उन्होंने 2 से 4 किलो कर दिया। सफ़ेद चने भी 2 किलो लिख लो। 2 किलो तो हर महीने आते हैं, अब तो रमज़ान है, तुम ये भी 5 साढ़े 5 किलो ले आना, दादी ने फिर टोका। चीनी पहले 8 किलो आती है, अब 10 किलो मंगवा लो। शाबाश है, सिर्फ 2 किलो ही ज़्यादा। भाई रमज़ान में रोज़ाना शरबत, मिल्क शेक, मीठी लस्सी बनेगी। दादी, ये रमज़ान का महीना क्या अब खाने पीने का महीना हो गया है? हम सुबह से शाम तक खाया करेंगे। कब आया ये नया ऑर्डर अल्लाह ताला की तरफ से? शिबली ने पेंसिल कागज़ साइड पर रखकर पूछा था। बको मत भाई, सारा दिन भूखे प्यासे रहकर शाम को अच्छा सा खाने को भी तो दिल करता है ना। अम्मा खजूरें तो लिखी ही नहीं। शाबाश है, उल्टी सीधी बातों में लगा लिया, खजूरें नहीं लिखी, लिखो फ़ौरन। खे से खजूर, उसने सादतमंदी से लिख डाला। ओहो, खजूरें 2 किलो, अच्छी वाली लाना, पैकेट में बंद, कहीं खुली उठा लाओ। मैदा भी तो लिखवाए ना, वरना समोसे, रोल और नमक पारे कैसे बनेंगे? जवादी ने याद दिलाया। तकरीबन घंटा भर बात करके ये लिस्ट बनी और दोनों ने बाजार की राह ली। रास्ते में कुछ तय हुआ, रकम निकाल कर देखी और दोनों फिर चल पड़े। फिर दोनों ने अपनी अपनी लिस्टों में शामिल सौदों में 1-1.5 किलो की डंडी मारी और कुछ चीज़ें मोहल्ले के ऐसे घरों के लिए ख़रीद ली जिनके बारे में वो जानते थे कि वो मुश्किल दाल रोटी पूरी होती है। वही दादी वाली बात की अफ्तारी में कुछ अच्छा खाने को जी चाहता है तो फिर दिल तो सबके पास है ना। अल्लाह, रमज़ान कब शुरू होगा? मैं तो शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। ये मुजस्सम इंतज़ार बनी जनाबा नीलमा साहिबा थी, जो दादी के कंधे पर सर रखे इरशाद फरमा रही थी। दोनों ने मुंह बनाकर देखा और जवादी बोला, दादी, क्या तारीख से ये साबित है कि रमज़ान का चाँद हफ्ता 1.5 हफ्ता लेट नज़र आया हो? हाँ, जो तारीख तू लिखेगा ना, तो मुझे यकीन है उसमें सिरे से रमज़ान का महीना होगा ही नहीं। जवादी, शिबली, कान खोल कर सुन लो। सहरी खाने का ये मतलब नहीं कि फिर सुबह देर तक घोड़े बेच कर सोए रहो। स्कूल अब टाइम से 1 घंटा पहले ही खुलेगा, तुम वक्त पर पहुँच जाया करना।
ये जुल्म क्यों, दोनों ने दुहाई दी। मगर नाना मामू अब अपनी बहू से बातें करने में मसरूफ़ हो चुके थे। बहू यानी शिबली की वालदा मोहतरमा उन्हें बता रही थी कि फ़लाँ फ़लाँ घर से तो अफ्तारी का बुलावा भी आ चुका है। दादी अम्मा वकील साहब के यहाँ की अफ्तारी तो होती भी बड़ी शानदार है, क्या कुछ नहीं बना होता उनके यहाँ। इस मर्तबा भी अफ्तारी उसी तरह की कराएंगे वो लोग, देसी आइटम तो एक भी नहीं रखते। शहर की एक मशहूर बेकरी से ऑर्डर पर सब तैयार करवाते हैं। सारा साल ये अफ्तारी अटेंड करने वाले उसी का जिक्र करते हैं। उनके यहाँ तो कपड़े भी सब एक से बढ़कर एक पहन कर जाते हैं। नीलमा अम्मी से कहना रमज़ान से पहले चलेंगे किसी रोज़ बाज़ार, ईद की शॉपिंग तो बाद में होगी, पहले कुछ कपड़े इन अफ्तार पार्टियों के लिए बना लें। शकीला मेरे लिए भी हल्के रंगों के कुछ नफीस सूट ले लेना, और मेरे ये कड़े और टॉप्स भी सुनार को दे आना, ज़रा मैले हो रहे हैं। जी अम्मा, और ये गले की चेन भी मैली हो रही है। ये हल्की सी चेन थोड़ा ही पहन कर जाऊंगी, मेरा लॉकेट नया रखा है। भाई आप दोनों भी अपने लिए ढंग का कोई कपड़ा ले लो, वकील साहब के यहाँ तो सभी इतने अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। तब नाना मामू ने जेब से बटवा निकाला, 2000 दोनों को थमाए। कहीं कोई ख्वाब तो नहीं, जवादी बड़बड़ाया। शायद मेरा दिमाग चल गया है, उल्टे सीधे नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। शिबली ने सर पर हाथ मारा। बेहदाए तो ये तुम्हारी तनख्वाह में से हैं, बाकी के जब होंगे अदा कर दूंगा। 2-2 हज़ार थमाकर नोटों से भरा बटवा फिर जेब में डाल लिया। 2-2 हज़ार में हम क्या क्या खरीदेंगे? एक कुर्ता शलवार तो बन ही जाएगा ना, ऐसे मुबारक मुकद्दस मौक़ों पर कुर्ता शलवार ही पहना जाता है। तुम हर जगह जीन्स चढ़ाकर दंदनाते पहुंच जाते हो और सबसे ज़्यादा अहमियत पा जाते हो। असल दुख तो ये हुआ ना, जवादी ने मुस्कुराकर जताया। और ये उन दोनों के हक़ में बहुत अच्छा हुआ कि दादी को कोई बात याद आ गई और जवादी की सुने बगैर वो नाना मामू से कुछ कहने लगी। दादी, इस साल आपने लीमू का अचार नहीं डाला, अब तो रमज़ान का महीना है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जवादी शिबली ने नीलमा की ज़्यादा ज़रूरत वाली बात पर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, बोले कुछ नहीं। हाँ भाई नीलमा बिटिया, वक्त पर याद दिलाया तुमने। आपा जान, अचार तो ज़रूर होना चाहिए, और वो भी अगर लीमू का हो तो क्या ही बात है। सिरके में डाला गया लीमू और हरी मिर्चें। हा भाई बस आपा, मंगवा डालिए सिरका और लीमू। नाना मामू तो नन्हे बच्चे की तरह मचल गए थे। अच्छा फिर पकड़ाई ने पैसे, ले आए सिरका, मिर्चें और लीमू, सुबह अचार डाल दूंगी। दादी भी झट राज़ी हो गई। ए शिबली, जवादी भाई, आप दोनों को शकील भाई की अम्मी बुला रही हैं। एक बच्चे ने घर में दाखिल होते ही ऐलान करने वाले अंदाज में इत्तला दी। वो सुनारन, इसको क्या याद आ गया? दादी ने बच्चे से पूछा, लेकिन वो इस सिलसिले में लाइलम था। वे सारे ज़माने के हमदर्दों, पहले मुझे सौदा ला दो, फिर निपटाते रहना मोहल्ले वालों के मसले। बस दादी, ये गए और ये आए, दोनों उठ खड़े हुए। लीमू बाजार से लाने के बजाय मोहल्ले के एक दो घरों से खरीद लेते हैं। हाँ भाई, शकूरन तनूर वाले के घर भी अच्छा बड़ा सा दरख्त नुमा पौधा है, और खाला दर्जन के यहाँ भी लगे देखे हैं, उनका कुछ भला ही हो जाएगा। ये आज खाला सुनारन ने क्यों याद कर लिया? बहुत दिन हो गए उनके यहाँ गए, चलो पहले उधर ही चलते हैं, शिबली ने कहा। लेकिन जवादी ने इत्तफाक नहीं किया, बोला पहले लीमू और दूसरा सौदा खरीद कर घर दे आए, फिर बाद में चलेंगे। शकूरन तनूर वाली जो सारा दिन रोटी लगाती थी, उसके घर में 2 वक्त का खाना मिलना मुहाल था। उन्होंने लीमू खरीदने की बात की तो खुश हो गई, बोली मेरा सारा दिन तनूर पर गुजर जाता है, आस पड़ोस वाले ऐसे ही तोड़ कर ले जाते हैं, कभी 4 पैसे देने का ख्याल किसी को नहीं आया। कुछ ऐसा ही हाल खाला दर्जन के यहाँ था, बल्कि उससे भी बुरा कि वो सफ़ेद बोझ घराना था। बच्चे स्कूल भी जाते थे और घर के दूसरे खर्चे भी साथ साथ थे। साथ साथ बने उन घरों में कितना तजाद है। शिबली उनके यहाँ से वापसी पर अफसरदा था। जवादी ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और बोला, साथ साथ बने घरों में नहीं, एक घर में रहने वालों में भी बड़ा तजाद है। अब नाना मामू और हमारी ही मिसाल ले लो। हाँ यार, ये नाना मामू तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह तक दबा ली, लेकिन खैर बख्शेंगे तो नहीं। तो और क्या, ये भी भला कोई बख्शने वाली चीज़ है? सामान एक बच्चे को दिया कि जाकर हमारी दादी के हजूर पेश कर देना, और सुनो, इस मजदूरी के उनसे 20 रुपये ज़रूर ले लेना। वो कहाँ देंगी, उल्टा मेरी अम्मा से शिकायत लगा देंगी। बच्चे ने मायूसी के आलम में नफ़ी में सर हिलाया। तुम भी ज़िद पर अड़ जाना, ना दें तो सहन में लोटनियाँ लगाने लगना। जवादी क्यों बच्चे को जलील करवा रहा है? भाई मैं चाहता हूँ अभी से मेहनत का सिला वसूल करना सीख ले, हमारी तरह कोई नाना मामू जैसा समाज इसके रास्ते में ना आए। आह भरकर जवादी शिबली के बराबर चलने लगा। खाला सुनारन के यहाँ भी वही हंगामा था। लिस्ट तैयार हो रही थी। दोनों ने सलाम किया तो बोली, कहाँ गायब हो गए थे वे, कभी नज़र ही नहीं आते। दिल की आंखों से देखे तो हम आसपास ही होते हैं खाला। शिबली ने करीब रखी कुर्सी संभाल ली तो जवादी मेज़ पर आ बैठा। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, रमज़ान में उसके ससुराल वालों को अफ्तारी पर बुलाना है, इसी सिलसिले में तुम दोनों को बुलाया है। भाई हम तो सादा से लोग हैं, किसी होटल में कभी जाना ही नहीं हुआ। तुम बताओ खाना कहाँ का अच्छा बनता है? आहो, हम तो सुबह शाम होटलों में ही पाए जाते हैं। वैसे खैर खाना सबसे अच्छा घर के किचन में ही पकता है खाला।
वे नहीं, वे मुंडे वालों को मुतासिर भी तो करना है। हैसियत में भी थोड़े माड़े हैं, पर मुंडा अच्छा है। मैं चाहती हूँ अभी से मुतासिर हो जाएं हमसे। मुतासिर नहीं होंगे, फैल जाएंगे, अपने आप को माड़े नहीं ऊंची शय समझने लगेंगे, और आप लोग फिर उन्हें कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। वो बार बार फिर ऐसी ही फरमाइशें करेंगे और हर चीज़ में 100 नुक्स निकाल कर खाएंगे। हाय वाकई, खाला सुनारन की आंखें फैल सी गईं। जवादी बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा, इस पॉइंट पर तो हमने गौर ही नहीं किया। वाकई लड़की वालों से मुंह फाड़कर फरमाइशें करना और इस काम में बढ़ते ही जाना तो लड़के वाले अपना हक समझने लगे हैं। शुक्र है आपके बेटे की समझ में बात आ गई है। अफ्तारी पर ज़रूर बुलाओ, बल्कि हमें भी बुला लेना, हम भी तो देखें कौन माँ का लाल हमारी गली में सेहरा बांध कर आने वाला है। और वो दादा सेठ का क्या हाल है? ठीक है, अपने छोटे पुत्र की तरफ गए हुए हैं, आ जाएंगे 10-15 रोज़ तक। छोटे पुत्र की मोहब्बत ने इतने सालों बाद कैसे जोश मार लिया? जोश पुत्र की मोहब्बत ने नहीं, एक हकीम की शोहरत ने मारा है। सुना है ऐसी दवाई देता है कि बंदे में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। वही दवा लेने गए हैं अब्बा जी। लो भला, घोड़े जैसी ताकत क्या करनी है? अब अगर साथ साथ घोड़े टप टप करके चलेंगे और जो अल्लाह ना करे तांगे की फरमाइश कर दी तो फिर? वे बकवास ना करया करो, कुछ हया करया करो, खाला सुनारन ने डांटा। घोड़े की कुछ और आदतें तो इससे भी ज़्यादा बेजार कुन होती हैं। दोनों ने उनकी डांट पर तवज्जो नहीं दी। दफ़ा करो घोड़े को, ये बताओ फिर अफ्तारी वेले क्या खिलाऊं कुड़ी के ससुराल वालों को? जो सारे खाएंगे वही उन्हें भी खिला देना। वही तो बकवास कर रही हूँ, क्या बनाऊँ सारों के लिए? ओहो खाला, टेंशन तो ना लो, हम बना देंगे मेन्यू। ज़रा रमज़ान का आगाज़ तो होने दो। जिस तरह की तैयारियां मोहल्ले के हर खाते पीते घराने में हो रही हैं ना, मुझे तो डर है अल्लाह मियाँ रमज़ान कैंसिल ही ना कर दें कि लो जी खाओ पकोड़े समोसे चाट, अला बला बेशरम लोगों। रमज़ान का चांद नज़र आने की उम्मीद पे लोग टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाए बैठे थे। दादी तो उन दोनों को कई बार छत पर भी दौड़ा चुकी थी। छत पर जाकर जवादी ने ऊपर नहीं बल्कि नीचे बराबर वाले घर में झांका है, जहाँ शहर बानो सहन में बैठी पूरी दिलजमी से चने की दाल साफ कर रही थी। ये लड़की अगर इतनी ही तवज्जो पढ़ाई पर देती तो PhD कर लेती। जवादी के शीश ही करने पर भी मतवज्जा ना हुई तो क्या उठा। शिबली ने भी आसमान के बजाय इधर उधर देखते हुए समझाया, हमने तो सुना है महबूब की खुशबू ही कान खड़े कर देती है। यहाँ इशारे कर रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ, तवज्जा ही नहीं है। महबूबा कानों से सूंघने लगती है क्या? शिबली ने कहकहा लगाया। तू चल जा, नीचे जाकर सबको बता दे आज चांद नहीं होगा। उसकी बातों से जवादी को बड़ा गुस्सा आया था। लेकिन ये क्या, इस जानदार कहकहे ने बानों को बेदार कर दिया। झुका सर उठाकर ऊपर देखा, बराबर की छत पर जवादी नजर आया। घर आकर बरामदे में खड़े अपने अब्बा की तरफ देखा और जल्दी से दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। लगता है कुर्बो जवाब में इसके मोहतरम और मुकर्रम अब्बा जी पाए जाते हैं। पता नहीं उन्हें भी गलत मौक़ों पर एंट्री देने की क्या बीमारी लग गई है। गलत नहीं, ठीक मौका पर जवान बच्ची की हरदम निगरानी करने वाले बेमिसाल वालिद साहब, मेरी तरफ से तेरी असमत को सलाम। जवादी ने दांत पीसकर शिबली को देखा और बोला, हाँ अपने मतवक्का ससुर साहब तो अगले जहाँ सुधार चुके हैं, तांग झांक के लिए आज़ाद हो, इसीलिए दूसरों के ससुर साहिबान को सलामियाँ पेश करते फिरते हो। ओहो दिल छोटा ना करो, बस निकाह के 2 बोल पढ़ने की देर है। फिर ये अब्बा क्या चीज़ है? अब्बा का अब्बा भी तुम्हारे सामने बेबस होगा। निकाह के 2 बोल ही तो असल स्यापा हैं, पता नहीं किस तरह पढ़े जाएंगे। हाँ यार वाकई मसला तो है, पर मायूसी गुनाह है। गुड्डो ये दाल ले जाकर किचन में रख दो। अक्लमंद बानो ने जवादी को मतवज्जा करने के लिए छोटे भाई को पुकारा था और जवादी भी फ़ौरन ही मतवज्जा हुआ। वालिद साहब नहाने के लिए गुसल खाने तशरीफ़ ले गए थे। वालदा टीवी के सामने चांद के इंतज़ार में बैठी थी, यानी रावी चैन ही चैन लिखता था। इशारों में हाले दिल बयान हुआ। फिर जवादी ने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। बराबर में खड़ी शिबली की जेब में हाथ डाला, 2 अदद आला किस्म की चॉकलेट्स बरामद हुई। दोनों बानों की जानिब उछाल दी। ये धांधली है, शिबली ने दुहाई दी। लेकिन इस वक्त जवादी साहब कहाँ कुछ सुन रहे थे। शिबली धप धप करता नीचे आ गया। आया चांद नज़र? दादी ने नज़र उस पर पड़ते ही सवाल किया। जवादी को आ गया है। हाय वाकई, सब खुशी से चिल्ला उठे। चलें फिर हम भी जाकर देखते हैं, नीलमा ने खतरनाक तजवीज़ पेश की। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अभी वो तलाश कर रहा है, जब नज़र आए तो सबको बुला लेगा। मखौल तो देखो ज़रा इसके, चवल ना हो तो। वालिद साहब ने अपने मखसूस अंदाज में दाद दी। वो आज दोपहर ही छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। पूरे 1 हफ्ते का क़याम था और शिबली को ये 1 हफ्ता 1 साल के बराबर महसूस हो रहा था। तभी टीवी पर रमज़ान का चांद नज़र आने का ऐलान हो गया। शिबली के अलावा सभी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। उसको पिछला रमज़ान याद आ रहा था, जब आधी रात को कभी नाना मामू तो कभी अब्बा जूते मारकर सहरी खाने पर मजबूर करते थे। हाय रात का वो पहर, भरी जवानी के क़यामत खेज़ नींद और सुहाने सपने, मगर एन क्लाइमेक्स पर ताड़ ताड़ बरसते जूते। 1000 बार कहा है सहरी खाए बगैर ही रोज़ा रख लेंगे, लेकिन नहीं जी, सहरी खाना बरकत है, ज़रूर खाओ। अब चाहे मारे नींद के नवाले नाक और कानों में जाए।
सारे मोहल्ले में चांद नजर आने का शोर मचा था। बानो भी कमरे में चली गई, जैसे चांद टीवी पर दिखाई ही तो दे रहा है। जवादी छत से नीचे आया, गुमसुम बैठे शिबली के करीब बिल्कुल उसी के अंदाज में बैठ गया। चलो भाई मुंडियों, बाजार से दूध लेकर आओ, रात के लिए दही जमाऊंगी। जवादी की अम्मी ने हुक्म जारी किया। हाँ भाई, दही तो हमारे घर भी बनेगी। शिबली ऐसा करो, 1.5 किलो दूध अपने घर के लिए भी ले आ। अम्मी को भी याद आ गया। सहरी के लिए बनेगा क्या क्या? दादी ने इश्तियाक से पूछा। शीता से कहा था मैंने, अगर चांद नजर आ गया तो शाम को आ जाना, काम में हाथ बटा देना, आती ही होगी। कबाब तो मैंने दोपहर ही बनाकर फ्रीज कर दिए थे, अब चिकन बना लेती हूँ, साथ में कोई एक आध सब्जी भी रख लेती हूँ। मीठे में भी कुछ होना चाहिए, नाना मामू ने ख्याल जाहिर किया। टाफियाँ ले आते हैं, जवादी ने झट से कहा। हाँ, अगर ऐसे ही जवानी गुजारोगे तो शहरी में मीठे में टाफियाँ नहीं बल्कि सिर्फ टाफियों जोगे ही रह जाओगे। अब्बा जी हेडमास्टर साहब ने पेशगोई फरमाई। मेरा ख्याल है आइसक्रीम मंगवा कर रख लेती हूँ। शकीला ने कहा तो नीलमा और उसकी वालदा को भी तजवीज़ पसंद आ गई। उन्होंने भी आइसक्रीम का ऑर्डर जारी कर दिया। मेरा ख्याल है अफ्तारी तो रोज़ाना सब इकट्ठे ही किया करेंगे, एक रोज़ सब मेरी तरफ, दूसरे रोज़ सब आपके यहाँ। हेडमास्टर साहब की ये तजवीज़ हाथों हाथ ली गई। कल अफ्तारी किधर की जाए, अब यह मसला उठा। मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। सब प्रोग्राम बनाने में लगे रहे कि नमाज में बाकायदगी तो सिर्फ रमज़ान के लिए मखसूस है। कल मसाजिद आबाद होंगी। आज तो ये फैसला हो रहा है कल की अफ्तारी किधर की जाए। आखिर ताई जान के इसरार पर कल की अफ्तारी उनके यहाँ रख ली गई। अफ्तारी में क्या क्या बनेगा इसे उन्होंने राज में रख लिया और सब बच्चों की तरह मुतजस्सिस दिखाई देने लगे। नीलमा, उठ जा, सहरी के लिए कीमा मटर बना ले और कलेजी भून ले। माँ के कहने पर वो उठी तो दादी बोली, कलेजी मेरे लिए भी रख लेना, सहरी में तो कौन लेने आएगा। हाँ, अफ्तारी में जब तुम लोगों के यहाँ आऊँगी तो खाऊंगी। और जवादी के सामने चने की दाल चुनती बानो आई। साथ साथ बने उन घरों में कितना तजाद है। शिबली को मोबाइल पर ज़ेबा का मैसेज मौसूल हुआ, रमज़ान मुबारक, और फिर एक जूते की तस्वीर। उस रात जब तक शिबली सोया नहीं, ज़ेबा का मैसेज खून खौलाता रहा। एक तो हमारे घर की कोई बात राज नहीं रखी जाती, हर बात का ऐलान करना फ़र्ज़ अवलीन ख्याल किया जाता है। भाई नहीं आँख खुलती सहरी के औकात में। नाना मामू या अब्बा एक आध जूता खींच मारते हैं तो इसमें इतना मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। मैं भी इस मरतबा ईद पर तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि याद ही करोगी ज़ेबा बेगम। यही सब सोचते नींद की वादी में उतरा, मगर उफ, अभी तो सोए थे। अभी घर वालों ने जगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। भाई मस्जिद में ऐलान तो हो रहा है, सहरी का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी है। मुझे कौन सा उठकर पराठे बेलने हैं और पूरियाँ तलनी हैं। उठ जाऊँगा 15-20 मिनट पहले। बारी बारी सब पुकारते रहे। वो मज़े से मुँह सर लपेटे पड़ा रहा, मगर जब अब्बा ने चप्पल उतारने की धमकी दी तो ज़ेबा का मैसेज याद आ गया। बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। अभी पूरे 30 मिनट बाकी थे। 10 मिनट उसने वाशरूम में गुजारे। जब दस्तरखान पर आया तो यहाँ से वहाँ तक अल्लाह की नेमतें मौजूद थीं, मगर उन्हें खाकर फिर सारा दिन भूखे भी तो रहना होगा। भाई मुझे पता है अल्लाह का नेक बंदा हूँ, और अब रोज़े छोड़ने पर अल्लाह ताला इतने नंबर तो नहीं काट लेगा कि रोज़े की आमद जन्नत का टुकड़ा ही ना मिल सके। ये क्या बड़बड़ कर रहे हो, सहरी क्यों नहीं खाते? सबसे पहले दादी ने नोटिस लिया। तबीयत कुछ ठीक नहीं, सोच रहा हूँ आज रोज़ा ना ही रखूँ, ऐਵੇਂ दिन में रोज़ा तोड़ना ना पड़ जाए, और जो हाथ पाँव मार के चंद नेकियाँ इकट्ठी की हैं वो भी इस गुनाह के नतीजे हाथ से जाएं। अभी इस टाइम उठने और खाना खाने की आदत नहीं हुई, किसी का भी जी नहीं चाह रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। चलो शुरू करो। अब्बा जी ने तबीयत की खराबी का नोटिस ही नहीं लिया। मुझे तो बिस्किट और चाय दे दें अम्मी। हे मेरे लाल, चाय बिस्किट से सारा दिन कैसे काटोगे? ये कीमे वाला पराठा खाओ, साथ में दही ले लो, और ये चिकन कौरमा। तुम्हारी दादी ने अपने हाथों का नहीं नहीं, लाहौल वाला कुआ था। जुमला मुकम्मल होने ही नहीं दिया। करीब बैठी दादी ने कमर में ज़ोर का हाथ रसीद किया और बोली, हाथ तो मेरे ये रहे, हाथ से बनाया है। ये वक्त मस्खरियाँ करने का नहीं, खाना खाने और दुआएं करने का है। शैतान ने हमें भी बातों में उलझा लिया है। बाहर गेट पर बेल हुई। शिबली को ही उठना था। बराबर वालों का बच्चा खड़ा था। अम्मी पूछ रही हैं, माचिस है आपके घर में? ओहो शिबली भाई, मतलब ये कि माचिस चाहिए। चाय बनाना रह गई है, हमने तो कब की सहरी खा ली, आप अभी तक खा रहे हैं? उसका मुंह चलता देखकर तबसरा किया। भाई हमारी मर्जी, हमने तुम्हारे नक्शे कदम पर थोड़ा ही चलना है। मुझे तो लगता है तुम्हारी अम्मा ने माचिस का बहाना करके टो लेने भेजा है। नहीं नहीं, माचिस तो चाहिए। सामने वालों के किचन की खिड़की घर में खुलती थी। शिबली को गेट पर खड़ा पाया तो बाजी सफ़ो बोली, शिबली भाई अपनी दादी से हाजमे का चूरन तो ले आना, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। और हाँ देखो, तुम्हारे फ्रिज में अगर 7 अप मौजूद है तो वो भी लेते आना। मेरी सहरी बर्बाद करोगे आप लोग। जवादी को नीलमा ने बहुत आवाज़ें देने के बाद आखिर पानी फेंक कर जगाया था। ये क्या बदतमीज़ी है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। अच्छा, और जो इतनी देर से हलक के बल चिल्ला रही हूँ, पता भी है मुझे किचन में कितना काम है। यार इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। सहरी खाएं, फिर दोबारा से यहीं से देखना शुरू कर दीजिएगा। सहरी, ओह टाइम हो गया।
اللہ ताला ने भी बंदा मोमिन के लिए कैसी कैसी आजमाइशें रखी हैं। किसी फरिश्ते ने भी नहीं कहा कि सहरी के औकात सुबह 9 बजे के करीब मुकर्रर कर लें, पर ना जी, वो क्यों कहते, उन्हें कौन सा रोज़े रखने पड़ते हैं। अच्छा फरिश्तों पर बाद में बिगड़ लीजिएगा, उठ जाएं वरना अब्बा जी खुद आ जाएंगे। अल्लाह, ये मेरे नसीब में हेड मास्टर अब्बा क्यों लिख दिया। मैं किसी प्रोफेसर की औलाद भी तो हो सकता था। फ़लसफ़े के प्रोफेसर जनाब नज़र हुसैन साहब खुद भी गुत्थियों में उलझे रहते, हम भी मगन रहते। ये सारे शिकवे अभी करने हैं, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। अगर दीवार से बानो आवाज़ ना देती तो हम तो शायद सोए ही रह जाते। शाबाश है, तो ये फिल्मी गानों की धुन पर नाते पढ़ पढ़ कर मौलवी साहब ऐमे भावे हो रहे हैं। जवादी उल्लू के पट्टे उठना है या नहीं। अब्बा जी ने ज़ुबान को ब्रेक लगा दी। अब्बा जी उठ गया हूँ, नीलो के साथ किचन में हूँ। आपके लिए एक कबाब फ्राई करूँ या 2? और नीलो पर हंसी का दौरा पड़ गया। हंसना बंद करो, ये वक्त खीखी का नहीं दुआओं का है। उठो, तुम एक प्लेट में कुछ अच्छा सा निकाल कर पड़ोस में बानों को भेजो और सवाब कमाओ। और नीलो की समझ में भी बात आ गई। सहरी के बाद सुबह की नमाज अदा करके जवादी लंबी तान कर सोने की सोच रहा था कि शिबली आ गया। तुम इस वक्त चैन नहीं है? अब्बा जी ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। वो मैं जवादी को बताने आया था, आज स्कूल जल्दी लगना है, कहीं सो ना जाए। अब तो वो सो चुका होगा, जाओ उसके कमरे में जाकर देख लो, वो कुछ नरम पड़ गए। तुम इस वक्त? जवादी ने भी देखते ही कहा तो शिबली चिढ़कर बोला, क्यों, ये वक्त क्या तुम लोगों ने नाजायज़ धंधे के लिए रखा हुआ है? जिसको देखो मेरी आमद पर गड़बड़ा रहा है। यार, सोने मरने लगा था, एक ख्वाब पूरा देखना है, पर तू भी ना उल्टे वक्त ही इंटरव्यूयां देनी होती हैं। मैं नाना मामू का पैगाम लेकर आया था, अब बिस्तरों को रौनक ना बख्शना, स्कूल जल्दी लगेगा, तैयारी करो, मुस्कुराकर इतला दी। जवादी ने आह भरी और बोला, होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन वो मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब। आज स्कूल में एक अजीब सी गहमा गहमी थी, हर चेहरे पर मुस्कुराहट और कुछ पाकीज़गी का रंग। मर्द हैं तो शलवार कमीज में मलबूस और हाथ में एक अदद टोपी पकड़े हुए कि जैसे ही अजान हो नमाज की नीयत बांध लें और टोपी सर पर रख लें। ख़वातीन हैं तो वो सर अच्छी तरह ढांपे हुए, हालांकि पहले यही दुपट्टे गले का हार बने नज़र आया करते थे। अक्सरियत ने तो हाथ या पर्स में दुआओं वाली किताब भी रखी हुई थी। सहरी के टाइम उठने की तफसील एक दूसरे को बताई जा रही थी। आज ही इतने पारे मुकम्मल कर लिए हैं, इतने नफल अदा किए हैं, आगे ये इरादे हैं। और ये दोनों खामोश खड़े थे, बल्कि नींद पूरी ना होने के असरात के साथ खड़े थे। दोनों का काम क्लासेस लेना तो नहीं था, लेकिन कुछ टीचर छुट्टी पर थे, इसलिए मैथ और कभी इंग्लिश ये दोनों ले लेते थे। क्लास में भी यही बातें थी। अक्सर बच्चों ने भी आज रोज़ा रखा था, वो एक दूसरे को बता रहे थे कि शाम में अफ्तारी पर उनकी माँ क्या क्या एहतमाम करने वाली हैं। हाँ भाई रज़ा, तुमने रोज़ा नहीं रखा क्या? जवादी ने खामोश बैठे एक बच्चे से यूं ही पूछा। सर, इसने रोज़ा रखा है, सिर्फ आलू शोरबे के साथ रोटी खाकर। अब अफ्तारी में भी इसके घर सिर्फ पकोड़े बनेंगे। इसके पापा की सैलरी कम है ना, ये गरीब लोग हैं, मुश्किल से तो ये स्कूल की फ़ीस अदा करता है। सर, हमारे घर तो अफ्तारी पर इतना एहतमाम होगा। बच्चे बोल रहे थे, रज़ा सर झुकाए खामोश बैठा और जवादी भी खामोश था। आज क्लासेस में पढ़ाई कम ही हो रही थी कि रोज़ा रखने के बाद अब टीचर्स कुछ निढाल और अफ्तारी की घड़ियां गिनते दिखाई दे रहे थे। सुबह वाली नूरानी कैफियत दोपहर आने तक ढल चुकी थी। बच्चा कुछ पूछता या क्लास में शोर होता तो टीचर काट खाने को दौड़ती। क्लास 4th में बहुत शोर था। नाना मामू की सहरी कब की हजम हो चुकी थी, अब मुरझाए से अपने ऑफिस में बैठे थे। इस शोर ने तबीयत पर और भी बुरा असर डाला। जवादी को हाजिर होने का हुक्म दिया और अब वो ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। अंदर आकर क्या करना है तुमने? सुनाई नहीं दे रहा बच्चे किस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी बपा कर रहे हैं? जाओ जाकर देखो उस क्लास में कौन सी टीचर है और उसकी अच्छी तरह क्लास लो। और हाँ, ये बच्चे अगर फिर भी चुप ना हो तो ये टेप रखिए, जाकर उनके मुंह पर चिपका दो। बहुत बेहतर। वैसे अगर हम सुबह सवेरे क्लासेस के आगाज़ पर ये टेप चिपका दिया करें तो सारा दिन काफ़ी सुकून से गुजर सकता है। जवादी, मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारी इज्जत अफजाई शुरू कर दूँ। जाओ। और ये शिबली कहाँ है? सुबह से एक बार भी मेरे ऑफिस नहीं आया। वो तो क्लास 5 को देख रहा है, आज क्लास टीचर छुट्टी पर है ना। ओह अच्छा, फिर ये क्लास 5 ही शोर डाल रही होगी। यकीनन ये नालायकी शिबली की हो सकती है, वरना मेरे स्कूल की टीचर्स इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हैं। जवादी कुछ भी तबसरा किए बगैर पलट आया। क्लास 5 में झांका शिबली बच्चों को बदजात देव की कहानी सुना रहा था। क्लास में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जवादी को देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है मेरी जादू बयानियाँ खींच लाई हैं, तुम्हें कहानी सुनने आए हो ना? नहीं, ये क्लास 4th से शोर बहुत आ रहा है, मैं ज़रा देखूं जाकर। उसने बराबर वाली क्लास की जानिब इशारा किया, फिर जाते जाते पलट कर बोला, आ जाओ तुम भी देखें तो सही कौन सी टीचर इस वक्त ये क्लास ले रही है। तुम देख कर मुझे बता देना। हाँ तो बच्चों, जब जिन ने परी से 100 रुपया उधार मांगा तो परी चीख कर बोली, फिर तू मेरा मामा लगता है, जा चला जा, मेरे गज़ब को आवाज़ ना दे। जवादी ने क्लास 4th में झांका। मिस साहिबा सुबह जो दुपट्टा अकीदत से सर पर लिए हुए थी अब पैरों के करीब गिरा हुआ था
اور وہ کرسی پر کچھ یوں تشریف فرما تھی کہ کمر بیگ کے ساتھ اور سر پیچھے کو ہو گیا تھا، آنکھیں بند، کھلا ہوا منہ اور خوفناک خراٹے۔ جوادی کو دیکھتے ہی بچے جو آپس میں شدید قسم کی خوش گپیوں میں مصروف تھے متوجہ ہوئے اور بولے، سر لگتا ہے ٹیچر فوت ہو گئی ہیں، ہم اتنا شور ڈال رہے ہیں بولتی ہی نہیں۔ ایسی چیزیں اتنی جلدی کیں نہیں ہوتی، سو رہی ہیں بیچاری، آپ ذرا ان کا شانہ پکڑ کر ہلائیں اور یہ دوپٹہ بھی ان پر ڈال دیں۔ جوادی نے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ایک بچی سے کہا۔ بچی نے ہدایت پر عمل کیا اور ٹیچر مس کومل جو صرف نام کی کومل تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شکر ہے، ورنہ بچوں کو تو پورا یقین تھا آپ سدھار چکی ہیں۔ سر آپ، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بولی، اصل میں رات کو جاگنے کی عادت نہیں ہے، سحری کے لیے اٹھنا پڑا تو اب نیند آ رہی ہے۔ مس کومل بہتر ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک میٹھی لوری گنگنا کر ان ماں کے جگر گوشوں کو بھی سلا دیا کریں، ان کی آوازیں پرنسپل صاحب کے لیے سما خراشی کا موجب بن رہی ہیں۔ یہ تو ہیں ہی ڈھیٹ، پتہ نہیں کس نسل سے تعلق ہے ان کا، سنتے ہی نہیں۔ بہرحال کچھ تو کرنا ہوگا آپ کو۔ میرا تو خیال ہے رمضان کے مہینے میں چھٹیاں دے دینی چاہیے۔ چھٹیاں یعنی کہ ڈاکٹرز چھٹی پر، پولیس والوں کی چھٹیاں، فوجی جوان دن بھر کیلولا فرمائیں کہ جی سب روزے سے جو ہیں۔ مس اللہ کا واسطہ اپنے ان خیالات کا اظہار کسی اور سے مت فرمائیے گا، ہماری قوم چھٹیاں مارنے کی پہلے ہی بڑی شوقین ہے۔ وہ کلاس سے باہر آیا، مس کومل کی آواز کان میں پڑی، ہاں تو بچوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد عید آئے گی، عید کے موقع پر سب ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسکول سے واپسی پر دونوں گھر میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ پر گر گئے تھے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ، ایک گلاس پانی تو پلا دے۔ اللہ کا بندہ نہیں، شیطان کا چیلا ہی تمہیں روزے میں پانی پلا سکتا ہے، دادی نے جل کر تبصرہ کیا۔ اوہ یاد ہی نہیں تھا، اور آپ نے یہ نہیں سنا، اگر روزہ دار بھول چوک میں کچھ کھا لے تو یاد نہیں دلاتے۔ جوادی خفا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری نیتوں کو خوب جانتی ہوں میں، اب اٹھ جاؤ اور وضو کر کے نماز پڑھنے مسجد چلے جاؤ، گھر میں ہی جماعت کرا لیتے ہیں، شبلی نے مزید پھیل کر لیٹتے ہوئے مشورہ دیا۔ امی کدھر ہیں؟ کچن میں گئی تھی افطاری کا سامان دیکھنے۔ ابھی سے افطاری کی تیاری؟ تو اور کیا، تمہیں تو صرف کھانا آتا ہے، یہ نہیں جانتے یہ سب بنانے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ مگر افطاری تو آج جوادی کے گھر ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہم بھی بنا کر لے جائیں گے۔ کیا بنا رہی ہیں امی؟ شبلی نے سوال کیا۔ اتنی دیر میں جوادی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ شام کو دسترخوان دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ تیاری دوپہر سے ہی کیوں ہونے لگی تھی۔ یہ اتنا سب کھائے گا کون؟ شبلی کا سوال سوائے جوادی کے سب کو بے تکا لگا تھا۔ سادہ سا کھانا بنا لیتے، ابھی سحری میں پھر کھانا ہے، اور رات کا کھانا بھی تو باقی ہے، جوادی نے یاد دلایا۔ بیل ہو رہی تھی، دروازہ کھلا تھا، اسی لیے سب بیٹھے رہے۔ ذرا دیر بعد خالہ مرچی کا پوتا ایک پلیٹ ہاتھ میں لیے شرماتا ہوا ادھر چلا آیا۔ وہ امی نے بھیجا ہے جوادی بھائی کے لیے، اور شبلی بھائی آپ کی پلیٹ بھی گھر پر تیار رکھی ہے، آپ ادھر ہیں تو ادھر ہی لے آتا ہوں۔ نہیں نہیں بہت شکریہ، بس یہ کافی ہے۔ شبلی نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر کڑا ہوا کپڑا اٹھایا، چند آلو کے پکوڑے، 2 جلیبیاں، 3 کھجوریں، اس نے یہ سب اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں ڈال لیا۔ بچے کی جانب دیکھا، وہ ان کے سجے سجائے دسترخوان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جوادی نے ٹیبل سے بہت کچھ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھنا شروع کیا۔ پلیٹ چھوٹی تھی، اللہ کی نعمتیں زیادہ۔ شبلی نے اپنی پلیٹ اٹھا کر اس میں کباب، سموسے اور چکن رول رکھ کر وہ بھی اس کی جانب بڑھا دیے۔ ایسے میں دونوں نے دادی کی ناراض نگاہوں کی جانب دھیان نہیں دیا۔ بچہ یہ سب لے کر تیز قدموں سے گھر سے نکل گیا۔ ستیہ ناس وے، ان چند پکوڑوں جلیبیوں کے بدلے اتنا کچھ اٹھا کر پکڑا دیا۔ ابھی میں نے کتنے گھروں میں افطاری بھیجنی ہے؟ ان کے گھر میں جو بنا وہ لے آیا، اب جو کچھ ہمارے گھر میں تھا وہ سب ہمیں بھی تو بھجوانا چاہیے تھا، شبلی سنجیدگی سے بولا، اور ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا کہ نیلو نے شور مچایا۔ اوفو، ایک تو کسی کو یہ یاد نہیں رہتا روزہ داروں کو نہیں ٹوکتے، جہاں تم جیسے روزہ دار ہوں اگر کوئی نہ ٹوکے تو بھول چوک میں اتنا کھا جائیں گے کہ افطاری تک گنجائش نہیں رہے گی۔ اور یہ تم نے محلے کے کیسے کیسے گھروں میں واقفیت نکالی ہوئی ہے، وہ سبزی والوں کا بچہ بھی کبھی کچھ لیے چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہی ہوگا۔ دادی شاید روزے کی وجہ سے دھیرے سے بولی تھی۔ آنے والا بچہ انہی کے لیے افطاری لایا تھا، سفید چنوں کی چاٹ، چند پکوڑے اور کھجوریں۔ دادی نے گہری سانس کھینچ کر بہوؤں کی جانب دیکھا، اور جب شبلی جواباً اس کی پلیٹ میں بھی بہت کچھ ڈالنے لگا تو اہل خانہ کے چہروں کے زاویے بگڑ گئے۔ بچہ چلا گیا تو سب برس پڑے۔ ہم کم کھا لیں گے، جواب میں اطمینان دلایا گیا۔ بے وقوف کے بچے، جو پکوڑے جلیبیاں وہ دوسرا بچہ دے کر گیا تھا وہ اس کی پلیٹ میں ڈال دینی تھی۔ شبلی کے والد صاحب نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اے نیلما، تم جلدی جلدی محلے کے گھروں میں بھجوائی جانے والی پلیٹیں تیار کرو، ورنہ یہ تو سب لٹا دیں گے۔ دادی کے حکم کی تعمیل میں نیلما اور دونوں خواتین فوراً جت گئیں۔ یہ پلیٹ ڈاکٹر صاحب کے ہاں جائے گی، یہ سناروں کے ہاں، یہ چوبارے والوں کی ہوگی، اور وہ سفید گیٹ والوں کی بھی بنا دو۔ میں بانوں کو بھی افطاری بھجواؤں گی، نیلو نے جوادی کے دل کی بات کی۔ ہاں ہاں، ان کی بھی تیار کر دو۔ جوادی کی والدہ کے پڑوسیوں سے پرانے اور اچھے تعلقات تھے، ان کے ہاں سب بھجوانے کی ضرورت نہیں، بس 2-3 چیزیں ڈال دو، اور یہ پکوڑے جو بچے دے کر گئے ہیں یہ بھی ڈال دو۔
आय हाय, शक्ल से ही कैसे बुरे से लग रहे हैं। लेकिन नीलमा और अम्मी ने दादी की बात पर अमल नहीं किया। बानों के यहाँ भेजने के लिए अच्छी सी प्लेट तैयार की गई। अफ्तारी के लिए दादी की दोनों मुलाजमाएँ भी मौजूद थीं। उन्हीं के हाथ से ये सब भिजवाया गया और ऐसी ही सजी सजाई प्लेटें उन घरानों से भी मौसूल हुईं। अफ्तारी के बाद भी दस्तरखान भरा भरा था, बहुत कुछ बच गया था। अगर पहले दिल बड़ा रखते तो ये सब ज़ाया ना होता। जवादी और शिबली आज कितने पारे पड़े हैं? हेडमास्टर अब्बा जी को अचानक ख्याल आ गया। वो अब्बा जी, सभी लोग पढ़ रहे थे, हमारे लिए कोई कुरान शरीफ था ही नहीं तो पढ़ते कैसे? जवादी ने कुछ गड़बड़ाकर वजाहत दी। चलो पढ़ लो। जी हम भी यही सोच रहे थे। शिबली ने सादतमंदी से सर असबात में हिलाया। आपा, मिलने वालों की अफ्तारी कौन से रोज़े पर रखी जाए? नाना मामू ने मौजू बदल दिया। दादी, आखिरी अशरे में मत रखवाइएगा, तब ईद की भी बहुत सी तैयारी करना होती है। नीलमा के कहने पर जवादी मुस्कुराया और बोला, जैसे देखें आपने इन मुबारक हाथों से ही चढ़ानी है ना? आप दोनों को क्या पता कितना काम होता है। जी हाँ, हमें क्या पता। उन्हें गुजरे सालों की अफ्तारियाँ याद आ गईं। खाना अंदर बाहर लाते, बर्तनों का इंतज़ाम करते, मेहमानों से खुश इखलाकी बरतते, दोनों बस बेहोश होने के करीब हो गए थे। माशाल्लाह सारे ही मिलने वाले खाते पीते घरानों से हैं। अपने अपने घरों में अफ्तारी खा बल्कि उड़ा ही रहे हैं। फिर घर में इतना खड़राग करने की क्या ज़रूरत है? शिबली की बात ने अहले खाना को गज़बनाक कर दिया। इज़्ज़त अफजाई के बाद दोनों ने घर के बाहर की राह ली। इतनी गर्मी, रोज़ा और फिर अफ्तारी पर इतना शकील खाना। मैं तो परेशान हो गया हूँ। क्या समोसे पकोड़े खाए बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती? नहीं, ये भी रमज़ान का हिस्सा है, बल्कि हमारी नामाकूल सकाफ़तों में से एक सकाफ़त है। सच्ची बात है, मैं तो अपनी अक्सर सकाफ़तों पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, जवादी ने चुपके से बताया। गली में सब्ज़ी की दुकान वालों का घर पड़ता था। खातून खाना घर के दरवाजे पर खड़ी गली में खेलने वाले बच्चे को आवाज़ें दे रही थी। उन्हें देखा तो मुस्कुराई और इतनी अच्छी अफ्तारी भिजवाने पर शुक्रिया अदा करने लगी। उसे क्या मालूम ये अफ्तारी भिजवाने पर हमें क्या क्या सुनना पड़ा था, मगर जिस तरह उसने शुक्रिया अदा किया है और खुश होकर ये अफ्तारी खाई है, दादी के किसी भी मिलने वाले के घर में ऐसी कदर उनकी भिजवाई अफ्तारी की नहीं हुई होगी। ये गली उनके घरों की सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पर थी। यहाँ छोटे छोटे घर थे और इन दोनों का उन गलियों में बहुत आना जाना था। किसी ने आवाज़ दी थी शायद। पीछे मुड़कर देखा, साजे की बीवी इधर आ रही थी। वे रमज़ान में तो मुसलमान हो जाओ, हेलो कहने पर उसने टोका। आप सुनाओ, ये जलपरी की चाल चलती किधर जा रही हो? मखौल ना करो, तुम्हें देखा तो तुम्हारी तरफ ही आई हूँ। वो असल में साजे का काम बड़ा मंदा जा रहा है। घर में तो सहरी की हांडी बनाने के भी पैसे नहीं हैं। कसम खाकर कहती हूँ, जैसे ही वो पैसे लाएगा सबसे पहले तुम्हारा कर्ज उतारूंगी। इस वक्त तो यही है। उन्होंने जेबें झाड़कर 200 रुपये उसकी जानिब बढ़ाए। ना, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। बस 1 पाव मसूर की दाल ही तो लेनी है मुझे। शोरबे वाली बना लूँगी, सबको पूरी आ जाएगी। और कल अल्लाह ने चाहा तो साजे को हांडीचो के पैसे ज़रूर मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रब हमेशा जेबें भरी रखे। दुआएं देते हुए उसने ज़ायद रकम लौटा दी। यार बिली, नाना मामू से तनख्वाह वसूल करना नागज़ीर होता जा रहा है। इससे पहले कि हमारी तनख्वाहें सहरी और अफ्तारी के चटपटे प्रोग्रामों की नज़र हो जाएं, हमें कुछ सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हो यार, अभी तो बानो और जेबा के लिए ईद गिफ्ट की तैयारी का कड़ा मरहला बाकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस पुरमसरत मौका पर गिफ्ट कैसा होना चाहिए। यार आजकल जो हालात चल रहे हैं, सोच रहा हूँ गुलाब के फूल खाला सुनारन के लान से तोड़ूं और अशार फराज की किताब से चुराऊं, फिर उन्हें सुनहरी हरूफ में लिखूं और पेश कर दूं। हक हाँ, हम गरीब और हमारे अरमान। बातें करते करते वो सड़क क्रॉस कर चुके थे। अब इस गली में थे जहाँ खाला सुनारन और उन्हें जैसे मतमौल अफराद के ऊंचे ऊंचे घर थे। गली में शकील इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उन्हें देखा तो दूर से ही आवाज़ें देने लगा। क्या हो गया है? हम इधर ही आ रहे थे। अम्मी बड़ा याद कर रही हैं, मैं तुम दोनों के घर भी गया था बुलाने के लिए। चलो मिल लेते हैं खाला जी से, उन्हें जाकर हमारी आमद की इतला तो करो। और थोड़ी देर बाद वो खाला सुनारन के घर मौजूद थे। आ गए तुम दोनों? वे किसी अच्छे से डॉक्टर का पता तो बताओ। खैरी सलाह, ये डॉक्टरों पे क्यों प्यार आ रहा है? प्यार की बात नहीं, तुम्हें बताया तो था अब्बा जी एक हकीम की दवाई खा रहे हैं। हाँ, वही घोड़ा बनने वाली। बस समझ लो घोड़े के बजाय अदमुआ किरला बना दिया है इस दवाई ने। फ़ोन आया था मेरे देवर का, कह रहा था कमज़ोरी बहुत है, उनके लिए तो चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपके देवर ने उस हकीम की गिच्ची नहीं मरोड़ी? अब्बा जी तो जिस हकीम की शोहरत सुनते हैं पहुंच जाते हैं उसके पास, फिर उल्टा सीधा खाकर बीमार भी होते हैं। अब हम इस बात पर हकीमों की गिच्चियाँ मरोड़ने लगे तो आधे हकीम भी नहीं बचेंगे शहर के। अब ये तो अब्बा जी को चाहिए ना कि आराम से बैठ जाएं, इस उम्र में जवानों वाली ताकत के ख्वाब छोड़ दें। खैर तुम किसी लायक डॉक्टर के बारे में पता करो। और दूसरी बात यह कि मैंने होने वाले दामाद की ईदी भेजनी है, ज़रा इस सिलसिले में भी मशवरा दो, बल्कि शकील के साथ चलकर ईदी खरीद लाना। इतनी जल्दी क्या है खाला, पहले उधर से लड़की की ईदी आने दो, जिस म्यार की वो होगी उसी म्यार की तुम भी भेज देना। ओह हाँ अम्मा, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। शकील भी तजवीज़ सुनकर फड़क उठा।
अच्छा, मैं तो सोच रही थी 10-15 रोज़े तक भिजवा दूँ। खाला ऐसा कीजिएगा, आपने उन्हें अफ्तारी पर मदऊ करने तो जाना है, साथ ही बातों बातों में कह दीजिएगा हमारे रिश्तेदार तो बच्ची की ईदी देखने के मुंतज़िर हैं। आप लोग अफ्तारी पर आते हुए साथ ही ले आइएगा, सब एक मर्तबा ही देख लेंगे। ले अपने मुँह से कहूँ? लड़के वाले कितना कुछ मुँह खोल कर मांग लेते हैं, बल्कि औकात से बढ़कर मांग लेते हैं। ये तो लड़की की ईदी है, बल्कि आपको झिझक हो रही है तो हमें साथ ले जाएं। तुम्हें तो मैंने अफ्तारी की अच्छी सी तैयारी के लिए कहा था, लगता है भूल गए हो। ऐसी बातें भी कोई भूलने वाली हुआ करती हैं। आप ऐलान तो करें तारीख का, फिर हमारी फुर्तियाँ देखें। हक हाँ बेचारे अब्बा जी, क्या कोई ख्वाब आ गया है उनकी तरफ से? शिबली ने राजदारी से पूछा। वे नहीं, वे मेरा मतलब था, पेट उनका इतना ख़राब हो रहा है कुछ नहीं खा पी सकेंगे। लो मैं समझा एक और फंक्शन पड़ने लगा है। जवादी ने सर हिला दिया। खाला सुनारन के यहाँ अफ्तारी वाले रोज़ सुबह से ही बड़ी रौनक थी। बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था और नज़दीक के रिश्तेदार तो सवेरे ही पहुँच गए थे। मिलने वालों की आमद शाम को थी, जिनमें शिबली और जवादी के घर वाले भी शामिल थे, जबकि उन दोनों के चक्कर तो बराबर खाला सुनारन के घर के लग रहे थे। अफ्तारी के बाद खाना भी था तो देगें भी चढ़ाई गई थीं। उन दोनों ने कहा था रेडीमेड मंगवा लें, तो खाला ठिनक कर बोली थी, जो रौनक दरवाजे के आगे पकती देगों से लगती है वो पक्की पकाई मंगवाने में कहा। दादा सेठ भी डॉक्टरी इलाज और घरेलू टोटकों की बदौलत सेहतयाब हो चुके थे और देगों के करीब निगरानी के लिए कुर्सी डाले बड़ी शान से बैठे थे। शिबली, मुझे शाम को जो सूट पहन कर जाना है दर्जन ने अब तक नहीं दिया, जा जरा जाकर खबर तो ले उसकी। दोनों घर आए तो दादी ने अपना दुखड़ा रोया। अच्छा जी, चले जाते हैं। वैसे ये जो अलमारी में इतने सूट भरे पड़े हैं, ये क्या ईद के रोज़ गरीबों में बांटने हैं? दफ़ा दूर, उल्टी बातें मुंह से निकालते हो। मेरे इतने महंगे कीमती सूट, मुंह भर के कैसी बकवास कर दी है। वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो गई। दोनों ने दर्जन के घर की राह ली। खाला दर्जन मशीन पर झुकी शायद दादी का ही सूट सी रही थी। उसके 2 छोटे बच्चे उसके करीब बैठे थे। शिबली ने जाकर दादी का पैगाम दिया, बोली, उन्हीं का सूट पूरा कर रही हूँ, 1 घंटे तक दे जाऊँगी। सुनो भाई, वो सिलाई के पैसे तो आज ही दे देंगी ना? लजाजत से पुरअंदाज। हाँ शिबली भाई, आज तो हमारे घर हांडी भी नहीं बनी, बच्चे ने बताया। अम्मी, जब पैसे मिलेंगे बोटी वाले चावल पकाओगी ना? छोटा बच्चा किस शौक को आंखों में भरकर माँ से इकरार चाह रहा था। दोनों चुपचाप वापस लौट आए। शाम को खाला सुनारन के यहाँ खूब रौनक लगी। मेहमानों ने जी भरकर खाया और जी भरकर ही ज़ाया किया। लड़की की ईदी की नुमाइश हुई, कुछ ने पसंद की, अक्सरियत ने नुक्स निकाले। अफ्तारी के बाद रात का खाना दादा सेठ ने अपनी निगरानी में सब कुछ लगवाया। जितना खाना बचा खाला सुनारन ने वो सब फ्रीज़र में मुंतकिल कर दिया। अम्मी, बोटी वाले चावल पकाओगी ना? और जवादी से 1 चमचा लेना भी मुश्किल हो गया था। अफ्तारी बहुत अच्छी रही, बड़ा मज़ा रहा। वापसी पर नाना मामू तबसरा कर रहे थे। क्यों अच्छी ना होती? आखिर बेटी की होने वाली ससुराल को बुलाया था। दादी को तारीफ कुछ पसंद नहीं आई। तुम लोग अब सुबह देर तक सोए ना रहना, स्कूल जाना है, आज भी छुट्टी की है तुम दोनों ने। जी जी ठीक है, हम हाजिर हो जाएंगे। स्कूल में आजकल अजब रौनकें थी। बच्चे टीचर्स को ईद कार्ड्स और तहाइफ दे रहे थे। वो खुशी से फूले ना समाती, एक दूसरे को ये सब दिखाया करती थी। उन्हीं दिनों नाना मामू से जिद करके दोनों ने क्लासें लेनी शुरू कर दी। शौक इल्म बांटने का नहीं चढ़ा था, बल्कि मकासद कुछ और थे। ओए ज़ालिमो, बेहदायतो, जितनी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं उनमें से कोई टीचर नहीं करती होगी, और ईद के तोहफे बांट रहे हो, इनमें हम तुम्हें याद ही नहीं आए? बच्चों से खुलम खुला नाराज़गी का इजहार हुआ तो अक्सरियत ने वादा कर लिया कल वो उनके लिए भी गिफ्ट लेकर आएंगे। बच्चों ने वादा तो कर लिया है, लेकिन इस बात की नाना मामू को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना छुट्टियों का ऐलान कर देंगे। दोनों को आने वाले दिन का शिद्दत से इंतज़ार था। आखिरकार अगला दिन तुलू हुआ और बच्चों ने रंग बिरंग गिफ्ट पेपर्स में पैक तहाइफ उनकी नज़र किए, जिन्हें शुक्रिया के साथ वसूल करके उन्होंने छुपा कर रख दिया कि नाना मामू जैसी मुखालिफ पार्टी ना सिर्फ स्कूल में मौजूद थी, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा पावर में भी थी। स्कूल से वापसी पर शिबली अपने घर नहीं गया। दोनों जवादी के घर, बल्कि सीधे उसके कमरे में ही आए। जवादी, आज धूप ढलने के बाद पौधों को पानी लगा देना। अच्छा अम्मी, धूप ढलने तो दें। दोनों उजलत में थे। कमरे में जाते ही शापर उलट दिए और जल्दी जल्दी रैपर उतारने लगे। पहला गिफ्ट जो मंजरे आम पर आया, जवादी की चीख सी निकल गई। निहायत खूबसूरत नफीस चूड़ियाँ, और शिबली हाथ में बुंदों की जोड़ी लिए तक रहा था। दूसरी बार शिबली को चूड़ियाँ हासिल करने की सादत हासिल हुई, जबकि जवादी के हाथ सुर्ख सब्ज नगों वाली अंगूठी आई। कल जाकर उन सारे बच्चों को मुर्गा बना देना है। सिर्फ मुर्गा नहीं, खरगोश, दौड़ भी लगवानी है। इतना घटिया मजाक कर गए हमसे, वो भी कल के बच्चे। सारे तोहफे देखने के बाद मारे गुस्से के बुरा हाल था। कुछ देर बाद गुस्सा कम हुआ, फिर से मेज़ पर फैली उन चीज़ों पर निगाह डाली। यार, तुझे तो ये धनक रंग दुपट्टा भी दिया गया है, लगता है किसी ने अपनी बहन बनाने का तहैया कर लिया है। शिबली हंस रहा था। दुपट्टे सिर्फ बहनों को नहीं दिए जाते, कुछ और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं।
मैं सोच रहा हूँ बानों को दे देता हूँ बतौर ईद गिफ्ट, कह दूंगा इसके साथ मैच करके सूट खुद खरीद लेना। यार अगर ये ज्वेलरी दर्जन खाला और चंद दूसरे घरानों की बच्चियों को दे दी जाए। शिबली की तजवीज़ को जवादी ने भी सराहा, लेकिन एक फैसला पक्का था, उन नाहंजार बच्चों से कल 2-2 हाथ ज़रूर होंगे। क्या क्या सोचकर मैं खुश होता रहा और गिफ्ट की सूरत में मिला क्या, ये अला भला। शिबली का जख्म फिर से हरा होने को था। चल अब ये सब समेट ले, कमरे में कोई आ गया तो नई क्लास शुरू हो जाएगी। एक तो रोज़ा, ऊपर से सदमा, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं रही। कम भी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। जवादी दराज हो चुका था। शिबली ने सब उठाकर अलमारी में फेंकने के अंदाज में रख दिया। वे आ गए हो हल चला के, मिट्टी ढो के, दादी ने कमरे में झांक कर तंज किया। ले भला आपके हिस्से का काम हम कर लेते तो आज आप क्या करती। शिबली पलट कर बोला, जबकि जवादी सोता बन गया। आहो यही उम्मीद है तुमसे, बुढ़े वेले दादी से हल चलवाओगे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पानी में क्यों, पसीने में कहें। आजकल बगैर बिजली के जो हाल हो गया है, मेरा इतना पानी जिस्म से निकल चुका है, लगता है बिस्किट की तरह खुश्क और खस्ता हो जाऊंगा। हाँ वे इन हुक्मरानों के लिए तो दिल से बद्दुआ ही निकलती है। जो भी आता है एक से बढ़कर एक होता है। पता नहीं इस मुल्क को मुखलिस क़यादत कब नसीब होगी। दादी ने ठंडी आह भरी। अगर आप मशवरा दे तो मैं सियासत में कूदने की करूं, तो मैं पहले ही नेक क़यादत के लिए तरस गई हूँ और तुम सियासत में कूद कर मेरी ख्वाहिश को हसरत बनाना चाहते हो। शाबाश है। शिबली ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर बोला, आप इतनी दोपहर में इधर ताया अब्बा के घर क्या कर रही हैं। घर जाकर चंद सिपारे ही ख़त्म कर लें। पानी नहीं आ रहा था इसलिए नहाने आई थी, अब नहाकर निकली हूँ तो ये बिजली चली गई है, फिर पसीने पसीनों। भला कोई फ़ायदा हुआ मुझे नहाने का। और तू घर क्यों नहीं गया, इधर आकर बैठ गया है। तेरी माँ राह देख रही होगी। आ जाऊँगा थोड़ी देर तक, अब बिजली तो है नहीं, इधर कम से कम दरख्त के नीचे दोपहर तो काट लूँगा। कह रहा है तेरा अब्बा जनरेटर खरीद लाएगा चंद रोज़ में। अरे दादी इतना शोर होता है ना उसका। इतनी बद्दुआएं आपने हुकूमत को नहीं दी होंगी जितनी इस संगीन इकदाम पर आस पड़ोस वाले आपको देंगे। लेकिन दादी पलट चुकी थीं। उठ जा, चल सेहन में चल, दरख्त के नीचे बैठते हैं, यहाँ तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ चलो तुम जाकर दरख्त तले चारपाई बिछाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, झूला भी ना डाल दूँ, शिबली ने इस फरमाइश पर भवें उचकाकर पूछा। हाँ फिर हम बारी बारी झूले पर बैठकर झूला डालो री सखी सावन आया गाएंगे, इसमें दोपहर तो कट ही जाएगी। दोनों बातें करते जामुन के दरख्त तले आकर बैठ गए, मगर ज़रा देर के बाद जवादी उठ खड़ा हुआ। यार आज एहसास हुआ है इन दरसी कुतब में कितना झूठ लिखा होता है। लंबे लंबे मजमून याद करते दिमाग पची हो गया, हाथ टूट गए। उन्वान होता था दरख्तों के फ़ायदे, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा लिखा जाता था दरख्त की ठंडी छाँव में बैठकर गर्म दोपहरें मज़े से काटी जा सकती हैं। बंदा पूछे किधर है वो ठंडी छाँव। जवादी मुसलसल बड़बड़ा रहा था। यार अभी छत पर मैंने बानों की झलक देखी है, मेरा ख्याल है वो तुझे बुला रही है। बस इतना सुनना था, जवादी साहब ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगाई। मिनट के 1000वें हिस्से में छत पर पहुंचे और उतनी ही तेज़ रफ्तारी से पलट भी आए। क्या हुआ, गर्मी से पिघल चुकी है, शिबली ने संजीदगी से पूछा। जवादी चारपाई पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेता रहा। कुछ देर बाद बोला, तोबा तोबा, इतनी गर्मी है, अगर 2 मिनट रुक जाता तो बस रोज़े की हालत में वफ़ात याफ्ता होकर अल्लाह ताला से सारे अगले पिछले गुनाह मिनटों में बख्शवा लेने थे मैंने। तो खड़े रहते वापस क्यों आ गए। मैंने सोचा अगले साल सही, अब ये रोज़े तो कई साल तक गर्मियों में ही आएंगे, मैं क्यों जल्दबाजी से काम लेकर दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़ लूँ। तोबा तोबा, इतनी गर्मी। जलील इतना नहीं होता तुझसे एक गिलास पानी ही पिला दे। लगता है दिमाग को लू लग गई है, याददाश्त जवाब दे गई है जो पानी मांग रहे हो। वैसे ये बताओ, इधर आकर तो गर्मी में कुछ अफाका महसूस हुआ है ना। हाँ यार, तो खुद ऊपर जा तो अंदाज़ा हो कैसा जहन्नुम दहक रहा है। तो बस प्यारे, इसलिए मजमून में लिखा जाता था दरख्त हमें ठंडी मीठी छाँव देते हैं। ज़रा सोच, सारा दिन मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाला किसान जब दरख्त की छाँव तले आता होगा तो कैसी फरहत महसूस करता होगा। यानी बानो नहीं आई थी छत पर। जवादी ने घूर कर उसे देखा। शिबली ने इत्मीनान से नफ़ी में सर हिला दिया। जवादी ने दांत पीसे, मगर कुछ सोचकर बोला कुछ नहीं। वैसे अब दरख्तों की ठंडी मीठी छाँव वाली बात से वो मुत्तफिक हो चुका था। वे शिबली जवादी, शाबाश है, वही मज़े से इधर पड़े चारपाई तोड़ रहे हो। इतना नहीं होता कुछ काम ही कर लो। दादी बरामदे में खड़ी बरस रही थी। मज़े से, दोनों ने एक साथ कहा। फिर बोले, आप भी आकर ये मज़े ले लें, रोका किसने है। लाइट आ गई है, नीलमा ने यह इतला देकर अनजानी खुशी से हमकिनार कर दिया। तुम दोनों चलो मेरे साथ, चलकर इब्राहिम के पास बैठो, हमें भी अफ्तारी करानी है, कुछ लिस्ट तो बना लें चीज़ों की। मैं भी चलती हूँ। यह सुनकर नीलमा भी तैयार हो गई। घर में इस वक्त शिबली के वालिद, वालदा, नाना, मामू और शीदा सर जोड़े मीटिंग में मसरूफ़ थे। जी मेरा तो ख्याल है सिरी पाए पका लें, सारे रज रज के खाएंगे। शीदा ने संजीदगी से मशवरा दिया था। आपा, इस बला को हमारे सर पर बिठाकर किधर चली गई थी आप।
कभी कहती है सिवैयाँ पका लेना तो कभी गुड़ वाले चावलों का मशवरा देती है। नाना मामू सख्त झंझलाए हुए दिखाई दिए। मशवरे तो अच्छे हैं नाना मामू, एक मुनफरिद अफ्तारी जो मुद्दतों याद रहेगी। मैं मीठे में आइसक्रीम और ट्रैफल का सोच रहा हूँ। हाँ इब्राहिम, अच्छा सोचा तुमने, यही लिख लो। दादी खुश हुई, फिर बोली, कौरमा अच्छा सा बनवाना, निरा मिर्च मसाला ही ना हो। जी नाना मामू, और चावलों की डिश में अफ़गानी पुलाव होना चाहिए। ये नीलमा थी जिसके मशवरे को बेहद सराहा गया। तुम दोनों भी तो कुछ बोलो। दादी को उनका खामोश रहना भी पसंद नहीं आया। पेप्सी की बड़ी बोतलें मंगवा लीजिएगा, बर्फ़ लगे टब में उंडेलते जाएंगे, जब बर्फ़ पिघलेगी तो बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ गैस कम हो जाएगी तो एक सिलेंडर लाकर गैस भी टब में डाल देंगे। इधर अफ्तारी हुई, उधर हमने आग लगाई और गैस पीने वाले मेहमान उड़ते हुए अपने घरों को पहुँचे। यूँ ये बाबरकत तकरीब भी टाइम पर इख्तिताम को पहुँचेगी, वरना तो मेहमान आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। इसी में सहरी का टाइम हो जाता है। जवादी जब बोला तो सारे खामोश हो गए, फिर देर तक बोल ही नहीं सके, बस तासुफ से उसे देखते ही रहे। आखिर दादी हल्की आवाज़ में गोया हुई, गलती मेरी है, मैंने ही इनसे मशवरा मांगा था। और ठंडी आह भरी, दादी फ्रूट चाट में ज़्यादा महंगे वाले फल डालने की ज़रूरत नहीं, आजकल अमरूद बहुत सस्ते हैं, 2 किलो बाकी के फल तो 4 किलो अमरूद के तनासुब से डाल लीजिएगा। ये और बात के सुंडियों वाले होते हैं, लेकिन ये भी ऐसा कोई मसला नहीं। फतवा लिया जा सकता है कि इस्लाम में फलों की सुंड। उठो चलो यहाँ से, शक्लें गुम करो अपनी। अब्बा ने शिबली को बात भी पूरी नहीं करने दी। अब्बा आजकल ऐसा ही तो होता है, लोग अपनी पसंद के मुताबिक फतवे हासिल कर लेते हैं। आपने शायद फिल्म खुदा के लिए नहीं देखी, वो जाते हुए भी बोल रहा था। इन्हें इधर बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी, अब्बा दादी से कह रहे थे। मेन्यू बनाते वक्त तो उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जब अमली काम का वक्त आया तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर थी। खाला सुनारन ने पक्की पकाई देगे मंगवाने के बजाय गली में रौनक लगाई थी। ये आइडिया दादी को बड़ा ही पसंद आया था और उन्हें कह दिया गया था, इधर ही देगे पकवाने का बंदोबस्त करो। हाँ अफ्तारी का सामान बाजार से आ रहा था, लिस्ट उन दोनों के सामने थी। दोनों उस पर झुके हुए थे, चेहरों पर अजहद संजीदगी तारी थी। लगता था किसी अहम मसले पर सोच विचार हो रही है। दादी ने तकरीबन 250 अफराद को मदऊ किया था। फी बंदा 3 समोसे, 3 चिकन रोल और 3 ही नगेट्स रखे गए थे। फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट, मिक्स सब्जी वाले पकोड़े और सादा पकोड़े, हरी मिर्च में खटाई भरकर बनाए जाने वाले पकोड़े, मीठे में रसमलाई और ताज़ा बनी गुलाब जामुने, मशरूबात में नींबू पानी, पेप्सी, लाल शरबत और बादाम का शरबत। ये तो थी अफ्तारी। इसके बाद रात के खाने की एक अलग लिस्ट थी हाथ में। बाल पॉइंट पकड़े जवादी एक दूसरे कागज़ पर नई लिस्ट बनाने में मसरूफ़ था। शिबली उस सिलसिले में मशवरा से नवाज रहा था। 350 समोसे काफ़ी रहेंगे। शिबली के कहने पर लिखते लिखते जवादी रुका, फिर बोला, नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएंगे। तुझे पता तो है लोग एक ही हल्ले में प्लेट में पहाड़ बनाने की करते हैं। ये कोई नहीं सोचता इतना खा भी सकेंगे या नहीं। हर बंदा 2 समोसे तो ज़रूर उठाएगा। अफ्तारी में सारे बड़े तो नहीं, कुछ बच्चे और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। बस 400 से ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं। इतने ही रोल और नगेट्स भी रख ले। बाकी पकौड़ों की इतनी वैरायटी अलग अलग नुमाइश के लिए रखनी ज़रूरी नहीं। सब कुछ मिक्स करवा लेंगे और सजा देंगे। उसमें से भी सादे वाले काट दो और मिकदार भी कुछ कम कर लो। फ्रूट चाट, दही बड़ों की मौजूदगी में चना चाट सिर्फ इजाफे के लिए रखी गई है। इसे खाएगा कोई नहीं, सारी ही ज़ाया जाएगी, इसलिए काट दो। मशरूबात में से लाल शरबत वाला ज़रूर कम करो। अफ्तारी में खजूरें भी होंगी, ये रसमलाई और गुलाब जामुनें कम ही खाई जाएंगी। बाकी दादी फ्रीज़ करेंगी, इस जहमत से भी उन्हें बचाना बेहद ज़रूरी है, ये भी कम कर दो। बाकी रही रात के खाने की तैयारी, इतना कुछ हड़प करके कोई मरन जोगा ही होगा जो ब्रोस्ट, कौरमा, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी उड़ा सकेगा। ब्रोस्ट कट करो, सीख कबाबों की मिकदार कम होनी चाहिए। बिरयानी में इतना ज़्यादा गोश्त डलवाने की तो ज़रूरत ही नहीं, लोग चिकन टिक्का खा खा के ही रेंज पूरी कर लेंगे। और कौरमा भी बहुत ज़्यादा बनवाया जा रहा है भाई। लीजिए, नई लिस्टें तैयार हो गई। अब जो हिसाब लगाया तो आंखें चमक उठी। और अब एक मज़ीद खुशखबरी यार, हम शहर के किसी मशहूर और महंगे कारीगर से नहीं पकवाएंगे, बल्कि किसी छोटे इलाके के अच्छा पकाने वाले को लेंगे। हाँ भाई, उसके चार्जेस खासे कम होंगे। चल आज ही इस सिलसिले में कोशिश शुरू करते हैं। अफ्तारी तो कल शाम थी, लेकिन दादी ने अपनी भांजी यानी ज़ेबा की वालदा ज़किया बेगम और उसकी छोटी बहनों को आज ही मदऊ कर लिया था। जिस वक्त वो फ़ोन पर ज़किया से बात कर रही थी, बकौल जवादी शिबली के कान किसी खरगोश की तरह खड़े थे और दांत भी किसी खरगोश की तरह ही निकले हुए थे। आहो तो ठीक है ना, तुम्हारी बानों तो रहती है ना दीवार पार, जब जी चाहा आलू प्याज तो कभी नमक मांगने के बहाने पहुंच जाते उसके घर दीदार करने। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं फ़कीर हूँ? हर बात का मतलब ना पूछा करो, कुछ खुद से भी समझ लिया करो। समझूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, इस वक्त तो मैं नहा धोकर अपना बेहतरीन सूट ज़ेब तन करने लगा हूँ कि खाला ज़किया ने कहा है वो बमा फैमिली तकरीबन 4 बजे हमारे घर को रौनक बख्शेंगी।
वे शिबली, तेरी खाला आ रही है आज, बाल बच्चों समेत घर में जगह कुछ कम पड़ जाएगी, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जवादी के घर चला जा। हुक्म था कि बम। शिबली के तो होशो हवास मुअत्तल होने को थे। बेशक दादी, बजा इरशाद फरमाया, मेहमानों के बहुत हकूक़ होते हैं। जवादी सर हिला हिलाकर तायीद कर रहा था। मैं बरामदे में बिस्तर लगा लूँगा दादी, मगर खुदा के लिए मुझे बेघर ना करें। हाँ है, कमाल है वे। वैसे भी तो तेरा सारा वक्त जवादी के घर ही गुजरता है। आज मैंने कह दिया तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा है। दादी ये कहता है अब मुझे अपनी कोताहियों का एहसास हो गया है। मैं दादी के पास रहूँगा और ता ज़िंदगी दादी की खिदमत करूँगा। अच्छा, यकीन नहीं आता ये बात शिबली ने कही है। चलो, अगर अकल आ ही गई है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चल उठ, अपने नाना मामू के सर में तेल की मालिश कर दे। बेचारा सुबह से कुरला रहा है, सर में बड़ा दर्द है। कोई काम जवादी से भी कह दिया करें। फिर ना कर जवाब दिया। तू नहीं सुधर सकता, जा चला जा जवादी के घर। बरामदे में अपना काट कबाड़ सजाकर क्यों तमाशा बनाना है। कहाँ है तेल की शीशी, मालिश कर ही दूँ नाना मामू के सर की। ए इश्क, हमें बर्बाद ना कर, जवादी गुनगुना रहा था। ज़ेबा की आमद क्या हुई, बकौल शिबली घर में बाहर आ गई। हालांकि ज़ेबा हल्के पीले कलर का सादा सा सूट पहन कर आई थी। दुपट्टा घर भूल आई थी, बड़ी सी चादर लिए फिर रही थी। तब दादी ने अपना सफ़ेद बुराक दुपट्टा इनायत किया था। अफ्तारी में शामिल इतने सारे आइटम्स पर लड़कियां बेहद खुश हो रही थीं, मगर ज़ेबा कुछ खामोश सी हो गई थी। कुछ कम है तो बताओ, लिख लेता हूँ। शिबली मौका पाकर करीब आ बैठा। ये बहुत ज़्यादा है, और हम जैसे मेहनत कश जो घर की दाल रोटी चलाने की फ़िक्र में सुबह से शाम कर देते हैं, जब इतना असराफ देखते हैं ना शिबली, तो थकन और बढ़ जाती है। क्या हो गया है हमारे बुज़ुर्गों को। असल में हमारे बुज़ुर्ग फारिग हैं तो बस शुगल मेला और क्या, वरना अफ्तारी कराने का ये ढंग नहीं होता। नहीं, अब तो हर तरफ यही ढंग चल पड़ा है। पता नहीं मुसलमान होकर हम इस्लाम के असूलों पर अमल क्यों नहीं करते। और अब रमज़ान के महीने में भी अफ्तारी के नाम पर नुमाइश का मौका निकाल ही लिया है। और हमारे आसपास कितने गरीब हैं जिन्हें अच्छा खाना सिर्फ ख्वाब में नसीब होता है। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो, कुछ जज्बात मेरे लिए भी बचा रखो। कसम से सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 बार तो नहाकर शैम्पू किया है। अब तो मेरे सर के बाल खुश्क रूखे होकर किसी बागड़ बिल्ले की तरह खड़े हो गए हैं। पता नहीं नाना मामू किस किस्म का शैम्पू लाने लगे हैं। ये जवादी भाई बड़े जिम्मेदार हो गए हैं। जब से मैं आई हूँ इन्हें किचन में ही देख रही हूँ। अफ्तारी की तैयारी में लगे होंगे बेचारे। मैं जाकर देखती हूँ। बैठ जाओ, आपस की बात है। आज जवादी का रोज़ा नहीं है, और यह बात मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है, इसलिए आज उसके लिए सबसे बेहतर जगह किचन है। बानो नहीं आई। अर्ज़ है कि बानो अभी जवादी के निकाह में आने की सादत से महरूम है, और जब महरूम है तो फिर इधर कैसे पाई जा सकती है। बड़ी अच्छी लड़की है, मैं जाऊंगी उसके यहाँ। और उसे कल की अफ्तार पार्टी पर तो बुलाया है ना। हाँ, नीलमा से कहा था उसने, ताई जान से कहा, और शुक्र है बात बन गई, वरना जवादी ने तो फिर किसी काम में हिस्सा नहीं लेना था। अड़ियल खोते की तरह पड़ जाना था एक तरफ। शाम को शिबली ने ज़ेबा को ईद का तोहफा दिया। बड़ी बेताबी से खोलने के बाद वो खासी खफा हुई कि गिफ्ट के नाम पर मुन्ने से टॉप्स और कांच की चूड़ियाँ थीं। अब तो बरसरे रोज़गार हो, मगर मुझ पर खर्चते तुम्हारा दिल दुखता है। बरसरे रोज़गार, आह भरी और राम कहानी किसी और वक्त के लिए उठा रखी। वैसे आज ज़रूरत से ज़्यादा निखरे निखरे बड़े ओपरे से लग रहे हो। कमाल है भाई, बजाय तारीफ़ करने के तुम तो जल गई हो। जल गई हो, वो हंसी फिर बोली। हर बात से अपना मतलब तुम अच्छी तरह निकाल लेते हो। ईद पर कैसा जोड़ा बनाया है। हमें इतनी फुर्सत कहाँ, जो अम्मी बना देंगी पहन लूँगी। शिबली ने जिम्मेदारियों में घिरी खूबसूरत नए नक्श वाली उस नाजुक सी लड़की को गौर से देखा। कहा कुछ नहीं। अगले रोज़ तो सवेरे से ही मसरूफियात का अजीब आलम था। नीलमा ने जवादी की मिन्नत करने पर बानो को भी बुलवा लिया था कि आकर काम में हाथ पटा देगी। वो बेचारी आम से काटन के सूट में झिझकते हुए आई थी, लेकिन यहाँ आकर कुछ इत्मीनान हुआ कि ज़ेबा और उसकी बहनों ने भी लान के सादा से सूट पहन रखे थे। बर्तन अलग अलग करना और सेट करके रखने का काम लड़कियों का था, जबकि जवादी शिबली का तो एक पाँव घर में, दूसरा देगों की निगरानी के लिए बाहर खुले मैदान में था। हालांकि नाना मामू ये जिम्मेदारी बखुशी उठाने को तैयार थे, लेकिन दोनों ने ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। पाऊजी, इतने गोश्त में बिरयानी नहीं पकती, मजाक ही होता है। चलो तुम मजाक ही पका दो, लेकिन मुंह बंद रखो। जवादी ने कारीगर की मिन्नत की तो उसने हैरत से उसकी जानिब देखा, फिर बोला, कौरमे में आपने बादाम नहीं डलवाए, और जितना मैंने गरम मसाला कहा था उससे कम ही लग रहा है। कुछ पता भी है बादाम कितने महंगे हैं। शिबली ने आंखें निकाली। हमें क्या पता जी, हमारे घर तो कभी बादाम नहीं इस्तेमाल होते। ये तो जहाँ काम मिलता है चीज़ें बता देता हूँ, और घर वाले सारी खरीदारी तो खुद ही करते हैं, उसने आहिस्ता से बताया था। दही की जगह इमली डाल दो। इमली? उसको झटका लगा। मैंने तो जी खुश्क आलू बुखारा लिखवाया था, मगर दोनों ने जवाब नहीं दिया। खुले आंगन में टेंट लग चुका था, मेज़ें सेट थीं, बर्तन जमाए जा रहे थे। एक जानिब आने वाले मोज़ेज़ मेहमानों के लिए कुर्सियाँ लगी थीं। सजी बनी ख़वातीन महंगे रेडीमेड सूट पहने
बच्चे और सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस मर्द। यार आखिरी अशर चल रहा है, नूर तो किसी एक चेहरे पर भी नहीं है। शिबली ने सबका जायजा लेकर सरगोशी की। हाँ तुम भी देख तो गलत सिमत रहे हो, मैं तुम्हारे बाएं हाथ पर खड़ा हूँ प्यारे। जवादी की बात पर शिबली ने उसकी जानिब देखा और बोला, अफसोस नूर वाकई कहीं नहीं है। जवादी बुरा सा मुंह बनाकर आगे बढ़ गया कि आज उसे बानो को ईद का तोहफा देना था। कल जब शिबली के पूछने पर ज़ेबा ने बताया था कि उसने अपना ईद का जोड़ा भी नहीं लिया, तब रात को शिबली और जवादी बाजार गए थे और उन्होंने बानो और ज़ेबा के लिए एक एक सूट खरीदा था। यार कुछ ख्याल कर, कितने लोग मौजूद हैं, इसमें ये संगीन गलती करने चला है, शिबली ने एहसास दिलाया। मैं उसे ये गिफ्ट देकर उसके चेहरे पर आने वाले खुशी और हैरत के खूबसूरत रंग देखना चाहता हूँ। उसके बाद अब्बा हजूर ने जो रंग तेरे चेहरे पर लाने हैं कुछ उनको भी याद कर ले, रहम कर अपने हाल पर। इन मेहमानों को रुखसत हो लेने दे, वरना फिर हमारे घर की अफ्तार पार्टी लोग हमेशा उसी हवाले से याद किया करेंगे। और जवादी भी कुछ सोचकर ठंडा पड़ गया। यह सूट देख रही हैं मेरा, भला कितने का होगा? एक मोहतरमा चहकते हुए कह रही थी। तुमने ये मेरे दुपट्टे का काम देखा है? और वो मुन्ने के अब्बा का सफ़ेद कुर्ता जिस पर बहुत नफीस कढ़ाई की गई है, यह हमने बहावलपुर से बनवाए हैं। महंगे तो बहुत बने हैं, मगर मैं देख रही हूँ इनके कुर्ते जैसा खूबसूरत कुर्ता किसी मर्द ने नहीं पहन रखा, और मेरे दुपट्टे जैसी कीमती नफीस कढ़ाई भी किसी और खातून के कपड़ों पर दिखाई नहीं दे रही। ये मेरा सेट देखा है, दुबई से मंगवाया है। ये कड़े नए बने हैं। हर तरफ ऐसी ही बातें थी, और जब मर्दों की तरफ आए तो भी ऐसी ही शेखियाँ थीं। नई गाड़ी, महंगा मोबाइल सेट, कई कनाल पर बनाया गया नया मकान, नया बिजनेस और बिजनेस ट्रिप। ऐसे शेखियाँ मारने वालों को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी? शिबली झल्लाया। भाई इतने दिनों तक इनकी अफ्तारियाँ खाई हैं, आज खिलानी भी तो थी ना, वरना ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे यार इनको देखकर तो नहीं लगता इतने अमीर कबीर हैं। जवादी ने सरगोशी की। हमारे यहाँ आजकल दौलत कमाने के लिए अमीर बनने के जो ज़राए हैं, उसके बाद चेहरों पर ऐसी लानत परस्ती है कि सड़क पर बैठा फ़कीर भी इनसे खूबसूरत लगने लगता है। तुम दोनों किस मीटिंग में मसरूफ़ हो? अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया है, तैयारी कराओ। शिबली के अब्बा उधर निकल आए थे और कुछ परेशानी के आलम में कह रहे थे। फिर उनके पास ही रुक गए और बोले, मैं तो मुलाजमत की गर्ज से शहर से बाहर ही रहता हूँ। बहुत से अजीज़ों से अरसे के बाद मुलाकात हुई और पता चला है कि अक्सरियत खासी दौलतमंद हो चुकी है। जी हाँ, दोनों ने इस बात में सर हिलाया। फुप्पो शाहिदा और भाभी मेहताब अब तक नहीं पहुंची, पता तो करो। जी बहुत अच्छा, दोनों ने फिर इस बात में सर हिला दिया। हालांकि अच्छी तरह जानते थे वो नहीं आएंगी कि ये वो रिश्तेदार थे जो ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके थे। दादी ने उन्हें बुलाया तो था, मगर वो खुद ही ऐसी किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करते थे जहाँ जाकर उन्हें रिश्तेदारों की तमस्कर उड़ाती नज़रों का सामना करना पड़ता था। शिबली को कुछ याद आया, बोला, जवादी फुप्पो साजिदा और भाभी मेहताब के घर कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो ताया अब्बा की गाड़ी की चाबी उड़ा, हम अफ्तारी का सामान उनके यहाँ देकर आते हैं। मेज़ें सज चुकी थी, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता था, और इधर अफ्तारी का सायरन बजा, अजानें शुरू हुई, उधर मेज़ों पर हल्ला बोल दिया गया। यार ये अंकल लगड़ बग्गड़ ने 4 समोसे प्लेट में रख लिए हैं, और वो खाला अकबर आज़म रोल पर रोल सजा रही हैं। तुमने इधर नहीं देखा? मामू शीशनाग भी प्लेट में अगले 1 साल तक का खाना सजा रहे हैं। इस तरह तो कम पड़ जाएगा। अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, पता नहीं नीयत क्यों नहीं भरती। हालांकि बकौल इनके हर रोज़ इनके यहाँ अफ्तारी पर हज़ारों रुपए लुटाए जाते हैं। खाला, ये अफ्तारी का सामान कहाँ से मंगवाया है? ज़रा भी तो जायका नहीं है, मिसेस शीशनाग दादी से कह रही थी। जी जब आप चाट, रोल, रसमलाई मिक्स करके खाएंगी तो टेस्ट का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जवाब शिबली ने दिया, जो उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन यह मौका खाने से इंसाफ करने का था। शिबली यार एक पकौड़ा ही और ले लो, जवादी ने आवाज़ लगाई। नहीं यार, सारी बात नीयत की होती है। पेट तो 1 समोसे, 2 पकौड़े और ज़रा सी फ्रूट चाट से भी भर ही जाता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी नीयत भी भर चुकी है। मकालमा यकीनन हाजरीन के लिए था। अहले खाना मेहमानों के शर्मिंदा होने पर शर्मिंदा हो रहे थे और गुस्से से अपने उन सपूतों को घूर रहे थे जो वाकई अब एक एक गिलास शरबत थामे कुर्सियों पर जा बैठे थे। अफ्तारी का दौर इतनी दूर तक चला कि मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। फिर इतना खा लेने और पी लेने के बाद रोज़ादार थक भी काफ़ी गए थे। अक्सरियत कुर्सियों पर ही नीम दराज थी। रात का खाना इशा के बाद रखा गया और इस सुस्ती काहली में सिवाय चंद एक के बाकी सबकी इशा की नमाज भी जाती रही। डिनर के दौरान भी दिलचस्प मनाज़िर देखने को मिले। रिश्ते की एक भाभी प्लेट में सीख कबाब, चिकन टिक्का सजाने के बाद बिरयानी में बोटी की तलाश के दौरान हलकान होती रहीं। एक साहब को कौरमे में ज़्यादा मिर्चों की शिकायत थी तो कुछ लोग वैसे ही मुंह बना बना कर खा रहे थे। इतनी ज़्यादा अफ्तारी के बाद गुंजाइश निकालना भी तो मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके मामला निपटा और 11:30 बजे तक घर मेहमानों से खाली हो सका। उफ़, इतनी थकन है, कल का रोज़ा कैसे रखेंगे? कल नहीं आज का 12:30 हो रहे हैं नीलो साहिबा, जवादी ने तवज्जो दिलाई।
हाय अभी तो सोए भी नहीं, वो बिस्तर पर गिर पड़ी। इतना खाना बचा पड़ा है और वो भी सबका सब प्लेटों में, अध खाया हुआ। देख देख कर हौल उठते हैं। अल्लाह की कितनी नेमतें ज़ाया की हैं। अरे तुम इतना ही निकालो जितना खाना है। अब दादी गुस्से का इजहार फरमा रही थी। महताब और साजिदा नहीं आई, हालांकि मैंने ताकीद की थी और मुझे भी ख्याल ना रहा, खाना ही भिजवा देती। दादी अब उन्हें याद कर रही थी। खाना हम दे आए थे उन दोनों के यहाँ। अच्छा वाकई, चलो तुमसे भी कोई अच्छा काम तो हुआ। अब उठकर ये प्लेटें तो खाली करो, कैसा गंद फैला है सहन में। हम दोनों, वो चीख पड़े। नहीं नहीं, बूढ़ी दादी और तुम्हारी अम्मा ये सब करेंगी, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। जब सहरी के वक्त उठेंगे ना दादी, तब कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। सेबा ने यह कहकर उनका गुस्सा कम कर दिया। ईद करीब आ रही थी, ऐसे में दर्जन के यहाँ चक्कर लगना कोई अजीब बात तो नहीं थी, मगर पता नहीं इन लड़कों को क्या था। इधर घर की कोई औरत दर्जन के यहाँ जाने की बात करती, उधर ये दोनों खुद उनका पैगाम लेकर जाने को तैयार हो जाते, लेकिन उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। वो भी सितंबर का एक हब्स में डूबा दिन था जब दादी उन्हें गुच्छा देकर जाने में कामयाब हो गई। वो तसव्वुर की आंख से वापसी पर उनका लाल बबू का चेहरा देख सकते थे कि दर्जन खाला उनकी तरफ से ईद की सारी खरीदारी, जिसमें चीनी, तेल, चावल से लेकर बिरयानी मसाले के पैकेट और नकद ईदी भी शामिल थी, मिलने पर अजहद मशकूर थीं और शुक्रिया अदा करने घर आना चाहती थीं, जिससे शिबली जवादी उन्हें हमेशा रोक देते थे। उनकी तरफ से ऐसी ईदी और भी मोहल्ले के कुछ ज़रूरतमंद घरानों को मिली थी, लेकिन उनसे दादी का मिलना जुलना नहीं था। खतरा सिर्फ दर्जन के यहाँ से था और आज वो सर पर मंडला रहा था। लेकिन दादी की आमद के बाद मंजर वो नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। दादी आई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। क्या हुआ दादी, रोज़ा लग रहा है? कहा भी था आपसे ना जाएं, हमें बता दें। वे ये बताओ, डाका मारा है कहीं? दोनों खामोश रहे। वो दर्जन बता रही है, तुमने मोहल्ले के कई घरों में फ्याजियाँ की हैं। क्यों, इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है क्या? जी दादी, अल्लाह ताला के यहाँ होने वाले इलेक्शन में, शिबली ने संजीदगी से कहा और दादी फूट फूट कर रो दी। दर्जन का मासूम सा बच्चा जो उन्हें बता रहा था, जवादी और शिबली भाई ईद के रोज़ की सारी चीज़ें देकर गए हैं। अब हमारे घर भी ईद के रोज़ अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। उन्होंने जो पैसे दिए हैं ना, अम्मी हमें ईद के कपड़े भी दिलाएंगी। और दर्जन हाथ उठाकर उन दोनों को दुआएं दे रही थी। सारे रोज़े रखकर भी दादी को लगा वो इलेक्शन हार गई हैं। आप रोए नहीं, हमें बुरा भला कह लें, लीजिए जूता हाजिर है। दोनों उनके कदमों में फ़र्श पर बैठे, मगर वो रोती चली गई। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, इस सीरीज़ की एक और कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और आज की कहानी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और इसमें जितने अच्छे मैसेजेस हैं वो यकीनन मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनने वाले बहुत समझदार हैं, आप सबको भी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।